السلام علیکم ریلیٹیوز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناول کا نام ہے ایک خواب جو ہمارا تھا۔ جگنو جلدی چلو، مون نے اشرت بھرے انداز میں اس کی سست روی پر بگڑ کر کہا، پھر اسے مخالف سمت میں مڑتے دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گئی۔ کہاں اسے ڈھونڈنا، موقع کے اشارے سے دریافت کیا۔ اب جا ہی رہے ہیں تو رونق بازار کو دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ بے نیازی سے شانے اچکاتے مون کی برہمی کو سرے سے نظر انداز کرتے وہ ہجوم میں کھو گئی تھی۔ اس کا ایک پورٹریٹ بنوا کر آنکھوں میں فٹ کروا لو۔ وہ طنزیہ بڑبڑائی تھی۔ جگنو نے ذرا توجہ نہ دی تھی۔ کس قدر فضول ہو تم، اس پر متعلق اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ سر جھٹک کر ایک جانب آ کر کھڑی ہوگی تھی۔ ایک تو گرمی، اس پر لوگوں کا ہجوم اور بس نکل جانے کا دھڑکا الگ سے لگا ہوا تھا، مگر جگنو کی نظریں سارے صورتحال سے بے نیاز کسی کو کھوجنے میں سرگردہ تھی۔ تبھی جیولرز کا گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے اپنی ازلی شان سمیت باہر نکلا تھا۔ جگنو کے اٹھتے قدم جیسے زمین نے جگہ لیے تھے، وہ ہوا کے سبق جھونکے کی مانند آیا اور گزر بھی گیا تھا۔ بس دیکھ لی رونق بازار، اب چلو۔ مون نے اسے گمسم کھڑے دیکھ کر اس کی ساکت پتلیوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ چونک کر جیسے عالم ہوش میں واپس آئی تھی۔ اور جگنو یہ شہر بہت یاد آئے گا نا، پتہ نہیں چلا 2 سال کیسے پلک پر جھپکتے بیت گئے۔ بس کو اپنے مطلوبہ مقام پر دیکھ کر مون کی جان میں جان آئی تھی۔ سیٹ ملتے ہی قدرے مطمئن ہونے کے بعد وہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ یہ شہر مریخ پر تو نہیں ہے کہ تم دوبارہ نہ آ سکو۔ جگنو ذرا بھی متاثر ہوئے اس کی آزردگی اور اداسی پر، بلکہ الٹا اس کا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ تمہیں وہ یاد نہیں آئے گا؟ مون نے کرکتے ہوئے اپنی جانب سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اس نے بھی فوراً جان بند کر پوچھا تھا، کون؟ ہر درجہ محتاط اور سرسری سا انداز۔ رونق بازار، وہ لفظوں کو خوب چبا کر بولی، اور اس کے بھولے پن پر جو تاؤ آیا وہ الگ۔ نام؟ وہ کون تھا؟ کہاں سے آتا تھا؟ کہاں جاتا تھا؟ کیا تھا وہ؟ دونوں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر بقول جگنو وہ اتنا چارمنگ ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد مجھے فطرت حسین لگنے لگتی ہے۔ میں اپنے ذوق حسن کو نکھارنے کے لیے اسے دیکھنے آئی ہوں۔ وہ ہر اتوار کوئی نہ کوئی کام نکال کر مارکیٹ آیا کرتی تھی، اور مون کو اس کی یہ فضول کی گردشیں سخت بور کرتی تھی۔ اس کی روم میٹ ماری اکثر اسے چھیڑا کرتی تھی، یوں ہی بے بنیاد گھومتی پھرا کرو، میں اپنی آنکھوں میں وہ خواب نہیں سجانا چاہتی جو مجھے بے رنگ کرتے ہیں۔ تو پھر مون نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ٹوک دیا تھا، کم آن یار، وہ میرا ایسا ہی فیورٹ ہے جیسے تمہارا رتک روشن اور جان ابراہیم ہے۔ اگلے ہی پل وہ اس نیزے سے نکل کر شرارت سے ہنسی تو مون نے بے بس نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا تھا۔ فضل الرحمان، عبد الرحمان 2 بھائی تھے۔ فضل الرحمان کی 2 بیٹیاں سحر اور جگنو تھی۔ جگنو سحر سے پورے 8 برس چھوٹی تھی۔ جبکہ وہ 3 سال کی تھی تو اس کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ چچا کے اپنے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کی امی نے سلائی کا کام کر کے اس کی اور سحر کی پرورش کی تھی۔ بیبے کا ٹھکانہ بھی ان کے گھر میں تھا۔ جبکہ چچا عبد الرحمان کے 2 بچے تھے، ایک جاذب جو اس سے تقریباً 2 سال بڑا تھا، اور ایک منیرہ عرف مون تھی اس کی ہم عمر دوست، ہم راز اور کلاس فیلو۔ انٹر تک دونوں نے پرائیویٹ پڑھا تھا، اور گریجویشن کرنے کے لیے دونوں کی ضد تھی کہ کالج جا کر پڑھیں گی۔ تینوں اکثر اپنے فیوچر پلان ڈسکس کرتی نظر آتے۔ جاذب کو پائلٹ بننے کا شوق تھا۔ میں تو ایئر فورس جوائن کروں گا، تم ایئر ہوسٹس بن جانا۔ نہ میں ایئر ہوسٹس بنوں گی، نہ ہی تم ایئر فورس جوائن کرو گے۔ ذرا سوچو جاذب، ہمارے گاؤں کے سرکاری اسکول میں ایک بھی ٹیچر نہیں ہے۔ جو دوسرے شہروں سے تعینات ہو کر آتے ہیں وہ 4 دن بھی نہیں ٹکتے۔ جو لوگ پرائیویٹ اسکولوں کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے بچے سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ ایجوکیٹڈ ہوتے تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ میں نے اور مون نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گریجویشن کے بعد اپنے گاؤں کے سرکاری اسکول میں بطور ٹیچر جاب کریں گے، اور تم بنو گے بوائز اسکول کے ماسٹر جی، سمجھے؟ مون کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں تھی، جو جگنو نے کہہ دیا اس نے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر ہلا دیا، مگر جاذب تو اس کے نادر خیالات سے ان کا بھڑک اٹھا تھا۔ دماغ درست تھا تمہارا، میں اور ماسٹر امپوسیبل۔ مون امیجن کرو جب یہ دھوتی کرتے میں مربوط، بلیک واسکٹ، زیب تن کی آنکھوں میں موٹے اتسو ہنسوں کا چشمہ لگائے، تیل میں چپڑے بالوں کی الٹی کنگھی کیے، بڑی بڑی مونچھوں کے ساتھ ہاتھ میں چھڑی پکڑے اسکول آیا کرے گا تو کیسا لگے گا؟ تمہارے مستقبل قریب کے مجازی خدا جیسا۔ اطمینان سے اس کی ساری بکواس سماعت فرمانے کے بعد جاذب نے خاصی متانت سے جواب دیا تو وہ ہاتھ میں پکڑا کفگیر اٹھا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ سحر ناشتے کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، اور وہ گھر کی صفائی کے بعد اب چیزوں پر پڑی نادیدہ گرد جھاڑ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جگنو دیکھنا دروازے پر کون ہے؟ ابھی اس نے مسجد سے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے ڈائجسٹ کا ورق پلٹا ہی تھا کہ سحر کی پکار پر خاصی بدمزہ ہو کر باہر آئی تھی۔ جی کیسے؟ دروازہ کھولتے مقابل ایک اجنبی شخص سے خاتون اور نوجوان دوشیزہ کے چہرے نمودار ہوئے تھے۔ لگتا ہے کوڑی نے ہمیں پہچانا نہیں، بڑے میاں نے
वो आंखों दांतों की नुमाइश की थी, पहचानेगी कैसे, पहली बार जो देख रही है। खातून ने आगे बढ़कर झट से अपने सार लिपटा था। उसके बेतकल्फी के अमल के मुजाहरे पर बौखला कर इंसैलक हुई थी कि सहर दुपट्टे से हाथ पहुँचती उनके पीछे ही तशरीफ ला चुकी थी, दरवाजे से हट गई थी। अरे मामू, आप अंदर आए ना। सहर का जोश काबिल दीद था। जुगनू को जहन पर जोर डालने पर भी याद ना आया कि कौन से मामू हैं। पुप्पो कहाँ हैं? ये इस्तफसार गालबन बेबे के मुतालिक था। वो अब्बा के चचाजाद भाई थे और अम्मा की शादी अपने पुप्पो के घर हुई थी, इस लिहाज वो बेबे के भतीजे और बैक वक्त अम्मा और अब्बा के फर्स्ट कजन भी थे। चचा के घर गई हैं, अभी बुलवाती हूँ। जुगनू जाओ, बेबे को बुला कर लाओ। सहर ने बैरूनी दरवाजे से ही इसे बाहर धकेला था। कौन आया है? बेबे के जाते ही मोहन जाजब ने इसे घेर लिया था। पुराने जमाने के मेहमान आए हैं, मतलब। दोनों आंखें निकाली थी। बेबे का भतीजा, अम्मा और अब्बा के कजन, इसने बताकर जान छुपाई थी। फिर तो हमें भी मिलना चाहिए, आखिर हमें भी इनसे वही रिश्ता बनता है जो तुम्हारा। दोनों झट साथ चलने को तैयार हो गए थे। हाँ हाँ चलो मोहन, तुम जरा सहर की हेल्प करवा दोगी। मोहन ये सुनकर वापस बैठ गई तो उसने रोज सफन जाजिम की जानिब देखा था। और तुम बाहर से सौदा सल्फ ला दोगे? सॉरी, मेरा कल टेस्ट और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। वो दोबारा सोफे पर नींद दराज होते हुए इसने किताब खोली थी। थैंक गॉड तुम लोग नहीं आ रहे, मेहमानों के साथ एक और पंगा। अरे सहर बेचारी अकेली क्या क्या देखेगी। मुंह ने इसकी बात काट कर फौरन स्लीपर पहने थे। और जाहिर है मेरे सिवा है ही कौन जो बाहर का काम बटाएगा। ताई अम्मा भी घर पर नहीं है। चलो अब तुम लोगों की खातिर रात को जाकर टेस्ट की तैयारी कर लूँगा। और जैसे जाने अजीम करता हुआ मुंह से भी आगे था। जुगनू बामुश्किल खुद को संजीदा जाहिर करते हुए इस बात में सर हिला रही थी। बेबे के भतीजे साहब तो अपने जाने किस नंबर वाले बेटे के लिए सहर का रिश्ता तलब कर रहे थे। जो हवास वाख्ता मुंह ने आते ही तीनों की समात पर जैसे बम फोड़ा था, जिसके असरात से जाजिब और जुगनू ने हंगामी तौर पर संभलते हुए बैठक की जानिब दौड़ लगाई थी। मगर इनके पहुंचने से कबल इजाब व कबूल के मराहिल तय पा चुके थे। अब मुबारकबाद का सिलसिला जारी था। बेबे ने हाँ कर दी, अम्मा से मशवरा किए बगैर जुगनू ने हैरत से आंखें पटपटाई थी। सहर की दहाइयाँ बराबर जारी थी। जाने कौन है, कैसा है, क्या करता है, ऐसे थोड़ी होता है। ना लड़की को देखा, ना अम्मा से मशवरा लिया, बस बिना सोचे समझे हाँ कह दी। जबकि मोहन और जाजिब केक और पेड़े की तलाश में सरगर्दा जब लड्डू के डब्बे तक पहुंचे तो दोनों की शक्लें काबे दीद थी। जुगनू को अपनी हंसी रोकना महाल हो गई थी। अम्मा के आने से पहले ही बेबे ने वही लड्डू मोहल्ले भर में बांट दिए थे। लो जी, काम ही खत्म। अम्मा बेचारी अपना सर पीट कर रह गई थी। अरे मैं क्या तुम्हारी औलाद की दुश्मन हूँ? जो किया है इसके भले के लिए किया है। किस चाह से मांगने आया था मेरा भतीजा? अब कैसे खाली हाथ लौटा देती। मगर बेबे ने लड़का देखा, तस्वीर देखी है मैंने, सोना जवान पढ़ा लिखा पुत्र है शाह मुराद का। और वो क्या कह रहा था इसका? वो दिमाग को जोर देकर सोचने लगी थी, फिर याद ना आया तो जुगनू को आवाज दी। अरे और जुगनू बता अपनी माँ को, वो क्या नाम था इससे जहाँ वो काम करता है? थाईलैंड। शहर की खूंखार नजरें इसी पर जमी थी। वो मुश्किल इतना बोलकर खामोश होगी। हाँ वही हाई साल लैंड। बेबे ने भी लफ्ज को तोड़ मरोड़ कर जोड़ ही लिया था, जिस पर अम्मा कुछ मुठवी नजर आने लगी। इनकी अपनी सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत करते गुजरी थी, इसलिए वो चाहती थी कि अब सहर और जुगनू का रिश्ता किसी अच्छे खाते पीते घराने में हो। कैसे लगे? सहर तस्वीर में बुरी तरह से मसरूफ थी और वो तीनों इश्तियाक पर बड़ी नजरें इस पर जमाए बैठे थे। जब जब्त का पैमाना लबरेज हुआ तो तीनों एक साथ चलाई थी। वो बेसख्त दिल पर हाथ रख कर रह गई थी। हूँ ठीक है। सरसरी सा लहजा क्या? मुंह को गहरा शौक लगा था। तेने गौर फिक्र के बाद महज ठीक है। जाज़ब और जुगनू मुतमिन होते हुए थे। मजीद स्टार्ट किया था। हमायूं सेठ लगता है। वो शर्मा कर बोली तो तीनों ने अपना सर थाम लिया था। जानते थे वो हमायूं सेठ की कितनी बड़ी फैन है। अरे फैन ही नहीं, ना हो तो शादी करवा देंगे हुमायूं सईद के साथ। आजकल टीवी पर बड़ी ऑफर्स आ रही हैं कि जो सबसे ज़्यादा एसएमएस करेगा वो तुम्हारी और मोनालिसा के साथ है। जुगनू चिढ़कर बोली तो सर तस्लीम कम करता मुस्कुराकर बोला था, माई गुड लक। वो सो रही थी जब मोहन ने इसे एक झटके से झंझोड़ डाला था। क्या तकलीफ है? कभी तो अपने घर भी टिका करो। अम्मा वक्त मेरे सर पर मुसलत रहना जरूरी है? ले सारी नींद उड़ा दी। हाँ मगर नींद तो उड़ चुकी है ना, अब सो कर क्या करोगी? वो मजे से कहती इसके पहलू में टिकी थी, जानती है रिजल्ट आ गया है। क्या? इसके एम्ब्रॉय लेते हाथ हवा में ही रह गए थे। कब और कहाँ? नींद तो अब उड़ चुकी थी। आज 10 बजे नेट पर इसका मुंह लटक गया था। तुमने तो ये मुश्किल ये शक्ल पर 12 के बजा रखे हैं, कहीं रह तो नहीं गई? जुगनू की बच्ची वही उछली जैसे किसी बिच्छू ने डंक कर मार लिया हो। चाचा बस बस ये झगड़ा बात में, पहले मसला बताओ। इसके जाराना तेवर देकर जुगनू ने फौरन ही मसला लाना अंदाज इख्तियार किया था। कंप्यूटर कौन ऑन करेगा? जाजिब कहाँ है? वो दुपट्टा उठकर इसे ढूंढ रही थी। सो रहा है। दोनों ने इतनी मुश्किल से जहन पर जोर दे देकर मॉनिटर, स्पीकर, माउस और कीबोर्ड की लीड्स सीपीयू में फिट की थी और जब ऑन किया तो जली हरूफ में लिखा पासवर्ड इनका मुंह चढ़ा रहा था। जुगनू को इतना गुस्सा आया फन फन करती इसके आंसर पर पहुंच गई। वो गहरी नींद में था। हल्के खराटे कमरे की खामोश फिजा में इर्तकाश पैदा कर रहे थे। जाजिब इसने 2-3 आवाजें दी मगर किससे मिस ना हुआ। आपकी बार अगर तुम ना उठे तो पानी का जग तुम पर उलट दूंगी। वो जानती थी इसकी अदाकारी वाली धमकी कारगर साबित होगी। क्या तकलीफ है? वही पार खाने वाला अंदाज जो कुछ देर कब्र वो मुंह से बरत चुकी थी। याद आते ही इसके लबों पर तबस्सुम बिखर गया था। वो दोनों ही नींद के रसिया थे और कच्ची नींद से उठाए जाने पर दोनों का मूड खराब हो जाता था।
مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اس سڑی ہوئی شکل پر فضول سی مسکراہٹ ملاحظہ کرنے کا۔ جا کر یہ پریکٹس آئینے کے سامنے کرنا، شاید وہ تمہیں برداشت کر پائے۔ چنچلاہٹ سے کہتا وہ دوبارہ بیچارہ چادر میں گھس گیا تھا، اور جگنو نے اس کو صاحب سے ڈھکتے ہوئے نہ صرف پانی سے بھرا جگ اس پر انڈیلا بھر کے ساتھ اس کی گردن بھی دبوچ لی تھی۔ اب بکو کیا پاس ورڈ ہے؟ جگنو اس کی آنکھیں باہر کو بلائی تھی۔ ٹکٹکا وہ مشکل بول پا مگر اس نے ذرا لحاظ نہ کیا تھا۔ میں نے پاس ورڈ پوچھا ہے، وہ چلائے۔ اور کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ چچی کی انٹری بس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی، جازہ پر مصنوعی کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ امی ہمارا رزلٹ آیا ہو، یہ پاس ورڈ نہیں بتا رہا۔ امون ابھی بھی اندر آئی تھی۔ بتایا تو تھا جگنو، اس نے کھانستے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ کیا بتایا تھا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر تل ملا اٹھی تھی۔ کتنی بار کہا ہے جگنو جگنو، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ میرا نام کیوں لے رہے ہو؟ وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ تمہارا نام ہی پاس ورڈ ہے احمق لڑکی۔ اب کی بار وہ اپنی ہنسی ضبط کر نہیں پاتا۔ چچی جان بھی مسکرانے لگی تھی۔ تم نے میرے نام پر پاس ورڈ کیوں رکھا ہے؟ نیا اعتراض۔ میں نے تمہارے نام پر نہیں بلکہ جس کے نام پر تمہارا نام ہے نا، اس کے نام پر پاس ورڈ رکھا ہے، سمجھی جگنو؟ ہم پاس ہو گئے ہیں۔ منہ نے درمیان میں آ کر خوشخبری سنائی تو اب اس کی فضول گوئی کو نظر انداز کرتے ہوئے خوش ہو گئی تھی۔ اب ہم ہاسٹل جائیں گے، اس نے اعلان کر دیا، مگر اماں نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں تمہارے ہاسٹل کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، جتنا پڑھ لیا ہے بس کافی ہے۔ اب گھر داری سنبھالو، سلائی کڑھائی سیکھو۔ بھابھی مون بھی تو جا رہا ہے، پھر جگنو کیوں نہیں؟ چچا یہ سن کر حمایت کرنے چلے آئے تھے۔ وہ خود تو پڑھ نہیں سکے تھے مگر انہیں شوق تھا کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلائیں، اور اس کے لیے وہ دن رات محنت کر رہے تھے۔ اب تو ان کا کاروبار پہلے سے بہتر تھا، پھر مون اور جازب نے بھی اس سلسلے میں انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں بھائی صاحب، اتنی مہنگائی ہے، ایسے میں گویا اماں کو اس کے مزید پڑھنے پر اعتراض نہیں تھا۔ یہ بھی میری ہی بیٹی ہے، آپ اس کے تعلیمی اخراجات کی فکر نہ کریں۔ چچا نے محبت سے ساتھ لپٹا تھا۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ اماں نے اجازت دے دی اور پھر وہ اور مون 2 ہفتے بعد شہر چلی آئی تھی۔ شہر کی رونقیں، رنگ اور میلت، وہ 2 سال تو جیسے پلک جھپکتے گزر گئے تھے، اور آج جہاں گاؤں واپس لوٹنے کی خوشی تھی، وہاں دوستوں سے دائمی جدائی کا احساس دل کو افسردہ کر رہا تھا۔ لو جی، یہاں تو کوئی پہنچوان ہی نہیں ہے۔ مون کو گہری مایوسی ہوئی تھی۔ دونوں اس وقت بس سے اتر کر ٹیلے پر کھڑی تھی اور ان کا گاؤں نظر آ رہا تھا، مگر پیدل مارچ کرنے کے خیال سے ہی وہ ہمت ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ شام کے 7 ڈل چکے تھے، ڈیرا ڈالنے کا وقت نہیں ہے، مہربانی فرما کر درخت سفر باندھ لے۔ وہ اپنا بیگ کاندھے پر لگا کر آگے بڑھی۔ ناچار مون کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ جگنو نے مڑ کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر سلپ ہوگی۔ مون کی دہائیاں روش پر تھی اور وہ مزے سے ہنستی جا رہی تھی۔ کیا بچوں جیسی حرکت ہے؟ ریت اور گرد غبار سے ہٹے ہاتھ، پاؤں اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اس پر برستی تھی۔ بڑا مزہ آیا ہے نا؟ ایک بار پھر سلائیڈ لیتے ہیں؟ وہ خوب شرارت سے ہنسی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ۔ خفا ہو کر آگے چلنے لگی تھی۔ جگنو نے اسے منانا ضروری نہ سمجھا۔ جب دونوں گھر پہنچی تو شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ آداب آئی ہو شام ڈھلے، شہر کے لہجے میں تشویش کا رنگ غالب تھا۔ جگنو اپنے ہاتھ پاؤں دھونے لگی۔ میں صبح سے انتظار کر رہی تھی، یہ ہم تھے، شہری بابو تو نہیں جو اتنی بے تابی سے آپ دل پرشے راہ کیے بیٹھی تھی۔ جگنو نے الٹا مذاق اڑایا تھا، تمہاری پسند کا مٹر پلاؤ بنا ہے، ساتھ پودینے کی چٹنی کا رائتا۔ وہ برا مانے بغیر بولی تو مون نے بھی اپنا بیگ اتار کر ہاتھ منہ دھو لیا تھا۔ یہ ڈش اس کی فیورٹ تھی، یہ کب لیا تھا؟ وہ دونوں کھانے کے بعد چھت پر آئیں تو سحر کے ہاتھ میں سیل فون دے کے چونکی تھی، انہوں نے بھجوایا ہے، وہ سرسری سا بتا کر SMS سے چیک کرنے لگی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں شرارت لہر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمارے بعد خوب دل لگا ہی رکھا ہے تمہارا؟ ہاں، مگر آج کل ذرا ہماری ناراضگی چل رہی ہے، وہ سادگی سے بولی تھی۔ کہ جگنو نے آپ کو اشکا کا استثمار کیا تھا، مجھے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا لہجہ بس تھا۔ دیکھ تو رکھا ہے تصویروں میں، مون نے حیرت سے یاد دلایا تھا، اور اسے 2 سال بعد دیکھنے کا کیا جنون چڑھا تھا۔ اسے کہو واپس آ کر 4 بندوں میں قبول کرے اور پھر چاہے عمر بھر دیکھتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ غصے سے بولی، اس کا غصہ جائز بھی تھا۔ 2 سال سے منگنی کا چھلا پہنا کر لٹکا رکھا تھا، نہ واپس آ رہا تھا، نہ شادی ہو رہی تھی۔ استثمار پر محض تاریخیں سننے کو ملتی تھی۔ ویسے نیٹ پر تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مون نے اپنے ناطق خیالات کا اظہار کیا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، مگر نیٹ مجھے کہاں یوز کرنا آتا ہے، یہ تھا اصل مسئلہ۔ اس کی فکر نہ کریے، اپنی جگنو ہے نا، دوسروں کے کمپیوٹر پر پنگے لے کر اچھی خاصی ایکسپرٹ ہو چکی ہے۔ مون نے اس کی آدھی ٹینشن ختم کر دی۔ وہ قدرے ہلکی پھلکی ہو کر چہریار کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ مجھے تو کچھ دال میں کالا لگتا ہے۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے جگنو نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ وہ بس زیادہ ڈیٹیکٹو بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے قیاس کے گھوڑوں کو اپنے دماغ میں ہی باندھ کر رکھو۔ دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، دل کر رہا ہوگا بیچارے کا دیکھنے کو۔ مون نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی، تو آئے اور شادی کر کے لے جائے، ہم نے کون سا پہلے بٹھا رکھے ہیں، باہر کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، تم فکر مت کرو، آ جائے گا۔ وہ اسے تسلی دیتے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جگنو سے چڑھ کر بیبی کی طرف چل پڑی۔ ایک فارم کافی ہوگا، وہ جانے سے پہلے پوچھنے آیا تھا
نہ ایک نہیں 10 فارم لے کر آؤ. ہمارے گاؤں اور آس پاس کے قریبی گاؤں میں جتنے بھی اسکول ہیں ہم سب نے اپلائی کرنا ہے. کہیں تو قسمت جاگے گی، اور قسمت اگر جاگ گئی تو انڈیا کے بارڈر پر. تو وہ مزے سے تمسکر اڑانے لگا تھا. دیکھو تو پہلے ہی ہر کام پر نظر نہ لگا لیا کرو. گورنمنٹ ٹیچر کی ویکینسی آئی ہے اور گاؤں کی لڑکیوں کے لیے اسپیشل آفر ہے کہ میٹرک اور FA پاس کی اپلائی کر سکتی ہیں. اس لیے دونوں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی. جازب نے الگ زرچ کر رکھا تھا. اور تمہیں بھی ہر کام کے لیے میں ہی نظر آتا ہوں. چرانے کو بولا. ہاں، اور ہو سکے تو 10 فارم اپنے ساتھ اپنے بھی لیتے آنا. وہاں آج کل مکمل اطمینان تھا. یہ شعبہ تمہیں ہی مبارک ہو. اس نے دونوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے. فارم جمع کروانے اور انٹرویو دینے کے ایک ماہ بعد لسٹیں لگی تھی. وہ ان میں اپنا نام دے کر بے حد خوش ہوئی تھی، مگر اسکول اور گاؤں کا نام دیکھ کر سارا جوش و خروش جہاں کے بانے بیٹھ گیا تھا. وہ گاؤں ان کی رہائش سے 100 کلومیٹر دور تھا اور وہاں تک کوئی سواری بھی نہیں جاتی. تو آتے ہی جازبہ چڑھ دوڑی تھی. حسب توقع وہ چادر میں منہ چھپائے اونگ رہا تھا. جب جگنو نے ایک جھٹکے سے اس پر سے چادر ہٹائی تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. کس نے کہا تھا تم سے کہ تم فارم پر اس گاؤں کا نام لکھو؟ اور دستوری فارم میں سے کیا آخری فارم پر اپنا نام لکھتا ہے؟ اس سے بھی غصہ آ گیا تھا. اچھا بھلا جازب نے کہا بھی تھا کہ بس آس پاس کے اسکولوں میں اپلائی کر لو. تمہیں ہی شوق تھا 10 فارم میں جمع کروانے کا. اب کرو اس سے جنگل میں جا کر جوائن. میں تو باز آئی ایسی خدمت خلق سے. وہ ان کا ملال ہی کم نہیں ہو رہا تھا. پہلی بار اس نے جازب کے مقابلے میں جگنو کو الزام ٹھہرایا تھا. تم دونوں ہی بدتمیز اور فارغ العقل قسم کے لوگ ہو. وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس چلی گئی تھی. اپنا قصور تو کبھی مانے گی نہیں. جازب کی آواز نے مین گیٹ تک اس کا تعاقب کیا تھا. آج دونوں آئی ٹی او کے آفس سے ریزائن کرنے آئی تھی. ویٹنگ ہال میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں. گھنٹہ بھر بعد کہیں جا کر ان کا نمبر آیا تھا. کتنا شاندار آفس ہے. پردوں اور فرنیچر کے وسط میں وہ واقعی لاجواب تھا. وہ ان خاصی مرعوب نظر آ رہی تھی. جگنو کے چہرے پر البتہ اظہار کن تاثرات. اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ریزائن کرے، مگر اتنی دور وہ جوائن بھی نہیں کر سکتی تھی. گلاس ڈور تک ہلتے وہ دونوں ایئر کنڈیشنر روم میں داخل ہوئی. سامنے اس شخص کو برجمان دیکھ کر جگنو تو پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی. جی فرمائے. وہ پہلے جگنو سے مخاطب ہوا تھا. ہمیں آپ سے کچھ نہیں فرمانا. آپ ہماری ڈائریکٹ ITO صاحب سے بات کروائیں. جواب اس کی بجائے منہ نے دیا تھا. مقابل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر مدھم ہو گئی تھی. تو آپ کو ITO صاحب سے ملنا ہے. وہ دونوں کونے ٹیبل پر جما کر منہ کی جانب متوجہ ہوا تھا، مگر جگنو اس کا جائزہ لینے میں مگن تھی. بلیک سوٹ میں کس قدر وجیہہ لگ رہا تھا. اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سرمئی تھا جس پر لمبی گھنی پلکیں سایہ فکن تھی. وہ پہلی بار سے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی. وہ کوئی شہزادہ تھا یا؟ جی میں نے فارم میں نہیں کہا تھا. وہ ان کی بدتمیزی پر اپنے دھیان سے چونکی تھی. مقابل کی فرا پیشانی پر خفیف سی شکن ابھری تھی اور اگلے ہی پر وہ کمال سنجیدگی سے گویا ہوا تھا. محترمہ میں ہی ITO ہوں. منہ نے اس انکشاف پر قدرے بوکھلا کر پھر اسے دیکھا تھا. اصل میں اس کے ذہن میں ITO کا یہ تصور تھا کہ وہ کوئی بڑی عمر کا شخص ہوگا. جی ہمیں ریزائن کرنا ہے. اب کی بار اس نے کچھ سنبھل کر شائستگی سے اپنا مدعا بیان کیا تھا. کیوں؟ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے اس کی سوالیہ نظریں دونوں کی جانب اٹھی تھی. اسکول بہت دور ہے. منہ نے صاف گوئی سے کام لیا تھا. یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ آپ کی بار اس کے آبرو تنے تھے. جی دراصل حال ہی میں پیمائش کروائی ہے. وہ نوکری لینے نہیں لٹانے آئی تھی. پھر بھلا لحاظ کیوں کرتی؟ اس نے لب بھیجتے دونوں کا استعفیٰ قبول کر لیا اور جانے کی اجازت دے دی. تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ آفس سے نکلتے جگنو اس کی سر ہو گئی تھی. ہاں مجھے تمیز نہیں ہے، اور اخلاقیات تو اس پر ختم ہے کہ وہی اسکول اسے نظر آیا تھا. باقی کے 9 فارم کیا ہوئے؟ وہ تب کا ڈہ گئی تھی. دونوں کچھ دیر تک منہ پھیلائے چلتی رہی. پھر بس میں بیٹھنے تک صلح ہو چکی تھی. آئیڈیا جگنو نے ایک دم سے چھٹکی بجائے پھر بس سے اتر کر مٹھائی لینے گئی تھی. مون کو لگا اس کا دماغ چل گیا ہے. یہ کیوں لائی ہو؟ اپنی ہیٹر پر قابو پاتے ہوئے مشکل استغفار کر پائی تھی. گھر جا کر ہم نے سب کو یہی بتانا ہے کہ ہمیں اپنے گاؤں والے گورنمنٹ اسکول میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. کیا؟ مون نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا تھا. اور جو لڑکیاں اسکول میں تعینات ہوئی ہیں وہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ 2 ماہ سے تو نہیں آئی ہیں. اس کا اطمینان قابل دید تھا. اور مہینے کے آخر میں گھر والوں سے کیا کہنا ہے؟ اس کا اشارہ تنخواہ کی جانب تھا. تب کی تب دیکھی جائے گی. فی الحال تم اپنا منہ بند رکھنا. اور پھر گھر بھر میں کیا پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. ہر کوئی مبارکباد دینے چلا آیا تھا. سحر نے سب کی مٹھائی اور چائے سے تواضع کی تھی. جازب کا دل تو بہت چاہا کہ اس کے جھوٹ کا پول کھول دے، مگر وہ ہر کس اس پوزیشن میں نہیں تھا. سو خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی. آج اسکول میں پہلا دن تھا. بچے درختوں کی چھاؤں میں ٹاٹ پر بیٹھے اپنے بھاری بھرکم بستے سنبھال لے اس کے ہی منتظر تھے. لڑکیوں کا اسکول بالکل آمنے سامنے تھا. دونوں کے درمیان 12 فٹ چوڑی سڑک تھی. دونوں اسکول میں اسٹاف روم کے نام پر محض ایک کمرہ تھا. اور سامنے کھلے گراؤنڈ میں خوب گھنے درخت تھے جن کی چھاؤں میں کلاس لگا لی گئی تھی. باؤنڈری وال کے نام پر تاروں کی دیوار تان کر اسکول کے حدود کو محصور کیا گیا تھا. جگنو نے لڑکوں کو بھی آواز دے کر گرلز اسکول میں بلا لیا جو لڑکیوں کی دیکھا دیکھی اپنے بیگ اٹھا کر شوق میں چلے آئے تھے. دونوں نے ایک درخت کے نیچے بوائز اور گرلز کو ترتیب سے بٹھا دیا. چپراسی اسٹاف روم سے دونوں کے لیے کرسی لے آیا تھا. اسپانی جی 6 سال کے ایک بچے نے اسے آواز دی تو مون نے ذرا مسکراتے ہوئے جگنو کو دیکھا.
देखो सब बच्चे मुझे उस्तानी जी नहीं जुगनू कहकर बुलाएंगे। हाँ हाँ, आप कोई जुगनू हो? सब बच्चे खिलखिला कर हंस दिए थे। बन के खामोश होने का इंतजार करती फिर डांट के बोली, ओके उस्तानी जी नहीं टीचर। टीचर सब बच्चों ने बुलंद आवाज से कोर्स के अंदाज में कहा था। मून का कहकर बेसाख्ता था। सब के घूंट पीकर कदरे नरम खोई से बोली थी, आपको ये सब किसने सिखाया है? वो समझ रही थी कि बच्चे ये सब खुद से नहीं कह सकते, सबकी तो वो जुगनू बाजी थी। इतने में जाजिब इसके पुष्ट की जानिब से बरामद हुआ था। गुड मॉर्निंग टीचर, क्या मैं आप ही आपकी क्लास में बैठ सकता हूँ? सब बच्चे फिर से खिलखिलाकर हंस पड़े थे। मैं अभी चचा जान से जाकर तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। वो सुनो, ये तुम सबका मास्टर जी है। बच्चों को इसे मुतारिफ करवाने के बाद तनफन करती वहाँ से चली गई। वो लिपट इसके सामने आया था। अरे सुनो तो जुगनू यार, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा, आई एम सो सॉरी। इसने झट से अपने कान पकड़ लिए थे। वो कुछ देर तो खड़ी से घूरती रही, फिर इसकी मस्कीन सूरत पर तरस खाते हुए वापस पलट गई। कैसा रहा आज का स्कूल में पहला दिन? वो दोनों शाम के बाद छत पर वॉक करने आई थी जब सहर ने जुगनू से इस्तग़फ़ार किया था। अच्छा रहा, तो मुझे कुछ दिनों से बहुत बेचैन और खोई खोई सी लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो। वो अपना मौजू गोल करते हुए रुक कर इसे देखने लगी थी। कुछ नहीं, साफ लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है। मैं वेट कर रही हूँ। जुगनू मंडीर पर चढ़कर बैठ गई थी। वो मुझे कुछ दिनों से बहुत इग्नोर करने लगे हैं। कितने दिनों से? जुगनू की नजर आसमान की नीली चादर पर टमटमाते रोशन सितारों पर थी। यही कोई 2-4 हफ्तों से इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी और गला रौंसा गया था। इग्नोर से तुम्हारा क्या मतलब है? ना मेरी कॉल रिसीव करते हैं, ना ही खुद से कभी बातें। बाकी के अल्फाज आंसू में घुल कर बह गए थे। जुगनू ने उसके हाथ से सेल फोन लिया और शहरियार का नंबर डायल करने लगी। 7वीं बार ट्राई करने पर कॉल रिसीव कर ली गई थी। क्यों जी शहरियार भाई, क्या मसला है आपके साथ? हमारी आप ही को परेशान कर रखा है। बगैर सलाम दुआ के शुरू हो चुकी थी। जुगनू, तुम अपनी आप ही से कहो कि मुझे भूल जाए। मैं ना तो पाकिस्तान आ सकता हूँ और ना इससे शादी कर सकता हूँ। बर्फ़ की तरह सर्द और सपाट लहजा जुगनू को अपनी जगह मुंजमद कर गया था। सहर भी इसका जवाब सुन चुकी थी। वजह बताने की ज़हमत कर सकते हैं? वो बेतासुर लहजे में बोली थी। मैंने यहाँ नेशनैलिटी के लिए शादी की थी और मेरे कागजों में मसला हो गया है। सॉरी, मैं बहुत मजबूर हूँ। टूटू की आवाज़ के साथ राब्ता बंद हो चुका था। अभी 3 रोज़ पहले इसके घर वाले शादी की डेट फिक्स करके गए थे। दोनों जानिब तैयारियाँ अरूज पर थी और इस इनकार से इसका दिमाग माऊफ होने लगा था। अम्मा और बेबे को पता चला तो वो अलग परेशान हुई। मामू और ममानी ने तो आकर 2-4 जुमलों में माजरत कर ली थी, मगर इनके घर की फिजा कितनी ही दिन सोगवार रही थी। वो बैठी शहर के मुतालिक ही सोच रही थी कि एक ब्लैक लैंड क्रूजर स्कूल के दाखिली दरवाजे पर आकर रुकी थी। बावर्दी ड्राइवर ने बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। आईडीओ साहब अपनी असली शान शौकत के हमरा बरामद हुए थे। वो स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। जुम्मे एक ख्वाब नुमा कैफियत में अपनी जानिब बढ़ता देख रही थी। क्या चल रहा है स्कूल में? इस पर वो अच्छा खासा खंगार कर गोया हुआ था। अच्छा चल रहा है। इसके लब धीरे से हिले थे। कोई मसला तो नहीं है? दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो गर्दो पेश का जायजा लेता। कितना हैंडसम और दिलकश लग रहा था। कोई एक मसला हो तो बताएं। स्कूल की इमारत और फर्नीचर, आपको जॉब तो बहुत दूर दराज के गाँव में मिली थी और जहाँ तक मुझे याद है आप मेरे ऑफिस रिजाइन करने आई थी। मैं उनकी बात काट कर जैसे चौंक कर सोचते हुए बोला था, लगता है याददाश्त के खाने में कंप्यूटर की मेमोरी फिट करवा रखी है। वो जुगनू के कान में कहीं मैं सुनता भी हूँ। वो खामखा ही मुस्कुराया था। मैं जानती हूँ क्या बोलते भी हैं। अब फरमाइए हमारे लिए क्या हुक्म है? मुँह ने अब की बार आजिज़ी दिखाई थी। ये आइडिया किसका था? आपके पास ने संजीदगी से इस्तग़फ़ार किया तो मुँह ने शराफत से जुगनू की जानिब इशारा कर दिया था। वो गालबन नाम जानना चाह रहा था। जुगनू वो इसकी शख्सियत के मक़नातीसी शहर से निकलते हुए मुकम्मल इत्मीनान से बोली थी। जी तो मिस जुगनू, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। आप जैसे बेकर्स और अपने प्रोफेशन के साथ इस कदर मुखलिस लोग बहुत कम होते हैं। आज से स्कूल आपका हुआ और मैं इसमें सारी फैसिलिटीज़ फराहम कर दूँगा। मिस मुनीरा, आपका जज्बा भी काबिल सताइश है। इसका अंदाज़ सताइश से भरपूर था। थैंक यू सर। दोनों की खुशी की इंतहा न रही थी। सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। वो आईडीओ के जाने के बाद जुगनू से लिपट की थी। देखा कितने अच्छे हैं वो, और तुम इतनी बदतमीज़ी से बात करती थी। बदतमीज़ी नहीं डियर, खासी जवाबी। वो डटाई से मुस्कुराई थी। आज स्कूल से छुट्टी का दिन था। वो खूब जी भर के सोना चाहती थी, मगर अम्मा ने सुबह सुबह घर की सफाई सुथराई पर लगा दिया। शहर को आज कुछ लोग देखने के लिए आ रहे थे। अम्मा पहले जाकर लड़का देख आई थी और बगौल अम्मा के लड़का खूबरू, वेल एजुकेटेड, बंगला गाड़ी और आला ओहदे का मालिक था। वो अख्तरी हवा ने वो गोरे ने अब ढूंढ ही लिया था। शहर तो इस आए दिन की पीरियड से खूब आजिज़ आ चुकी थी। अम्मा को इसने देखा। वो आज सुबह से खूब लंबी सी तस्वीर लिए बैठी थी कि शहर इन्हें पसंद आ जाए। कुछ देर में मेहमान आए, चले भी गए। अख्तरी हवा इन्हें बाहर में डोर पर छोड़ने के बाद मुंह लटकाए वापस आई थी। क्या कहा उन लोगों ने? इसने बेताबी से पूछा और अख्तरी बुआ के इंकशाफ पर अपनी जगह से उछल कर रह गई थी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसी कोई बात होगी। राबिया बहन, इन्हें जुगनू पसंद आई है और वो इसके लिए बेहद स्टार्ट कर रहे हैं। अम्मा ने सोचती नजरों से जुगनू को देखा और बिना सोचे समझे हाँ कर दी। ठीक है बुआ, तुम इनको हाँ कहलवा दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अख्तरी की तो जानो चांदी हो गई थी। एकदम से इसका चेहरा सुर्खियों से दौड़ने लगा था। अरे मैं तो कहती हूँ राबिया बहन, इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें जुगनू के लिए मिल ही नहीं
सकता, मगर अम्मा मैं हैरत के बायस अभी तक इसका मुंह खुला का खुला था। अम्मा को इसकी ये बेवकत की मुदाखलत बुरी तरह से खुली थी। पल में लताड़ के रख दिया था। तुमसे पूछ कर नहीं करनी मुझे तुम्हारी शादी अम्मा, मैं अभी पढ़ रही हूँ। वो रुआंसी होकर रह गई थी। इसका और मून का बीएड कंप्लीट हो चुका था और आजकल वो दोनों एमए इंग्लिश की तैयारियां कर रही थी। बहुत हो चुकी है पढ़ाइयाँ, अब अगले घर जाने की तैयारी करो। एक की तो उम्र निकल गई है, अब क्या तुम्हें भी घर बिठा कर बूढ़ा कर दो। अम्मा ने अब की एक ना सुनी थी। जुगनू की आई की बारात रंगीली होगी, रात मगन में नाचूंगी। मून खूब तालियां पीट पीट कर गा रही तो जाजुक चादर ओढ़े नाच रहा था। दोनों की शौकिया रोज पर थी। जुगनू को इनकी बेहसी पर इस कदर तैश आया कि अपनी बेबसी पर आंखों से आंसू निकल आए थे। अरे अरे ये क्या! दोनों फौरन इसकी जानिब लिपटे थे। वो मजीद जोर और शोर से रोने लगी थी। मुंह ने इसके आंसू साफ करने चाहे तो जाजुक ने टोक दिया था, रो लेने तो यार, ये तो शगन के आंसू है। जुगनू ने पास रखा गिलास उठाकर निशाना लगाया, मगर उसके लिए पहले से ही तैयार था। 100 दफा हो गया। अलबत्ता गिलास टूट गया था। मैं अपना गाँव और स्कूल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो दुख महज ये था, और होता भी क्यों ना। हाल में ही दोनों स्कूल की इमारत तमीर हुई थी। रंग और रोगन के बाद फर्नीचर सेट किया गया था। इसने कितने शौक से ग्राउंड में क्यारियां बनाकर फूल लगाए थे। शादी के बाद तो तुम्हें गांव छोड़ना ही था, आज नहीं तो कल। अब की बार इसने कतरे रिसाने से समझाने की कोशिश की थी। क्यों छोड़ना था? मैं सोच रखा था कि तुमसे शादी करूंगी। इसने तब कर अपने इरादे से आगा किया। मून की तो हंसी निकल गई। जाजिब ने बेसाख्ता दोनों हाथ उठाकर ऊपर किए। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बचा लिया जाजिब। वो चलाई मोहब्बत थी तो पहले कहा होता, अब कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। इसका मसनूई मलाल में डूबा लहजा जुगनू को सिलगा गया था। बाहर में जाओ तुम और इकरार मोहब्बत करती है मेरी जूती, वो तो मैंने स्कूल के लिए। वो बात अधूरी छोड़कर फिर से रोने लगी। अच्छा देखो, तुम स्कूल की फिक्र ना करो, मैं और मून है ना। वादा करो कि तुम स्कूल में जॉब करोगे। इस जुगनू ने फौरन हाथ आगे बढ़ाया, जिसे जाजिब ने थाम कर गोया तस्दीक की मोहर लगा दी थी। हाय अल्लाह जाजिब, तुम कितने अच्छे हो। खुशगवार कंगारता हुआ लहजा दोनों को चौंका गया था। वो इसकी कुछ देर कबल की जाने वाली परफॉर्मेंस पर कुछ कहना ही चाहता था, जब इसका इरादा भांपते हुए फौरन बोली, देखो अब तुम मुकर नहीं सकते, तुम वादा कर चुके हो। और वो वाकई मुकर ना सका। मेहंदी का फंक्शन रात 2 बजे तक चला। रात अपने तीसरे पहर में ढल चुकी थी जब वो अपने और सहर के मुश्तरका बेडरूम में आई थी। सहर चेंज करने के बाद सो चुकी थी, जबकि इतनी थकावट नींद के गलबे के बावजूद इसके सोने का दिल नहीं चाह रहा था। मुस्तकिल का खौफ और खशे दामन घेर थे। इसने एक बार भी मुझे देखने या बात करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की। इनके और हमारे स्टेटस में इतना फ़र्क है। इसने कोई इतराज़ तो किया होगा। अब जाने वो कौन है, कैसा है। और फिर मुझे जैसी आम शक्ल सूरत वाली एक गरीब घराने की लड़की से शादी से ही सादतमंदी हजम नहीं हो रही थी। रात भर ये सवाल मुख्तलिफ शक्लों में रूप बदल बदल से डराता रहा था, यहाँ तक कि कागज़ों पर साइन करने का लम्हा आ गया। मौलवी साहब के दस्तवार पर उसने अम्मा की जानिब देखा तो अम्मा ने इस बात में सर हिलाने का अंदिया दिया था। हिजाब कबूल के मराहल तय हुए तो अरफीन हमदानी का नाम इसकी धड़कनों में गूंजने लगा था। स्याह लैंड क्रूजर से उतरकर इसने देखा सामने वसी रकबे पर फैला वो महल नुमा घर रोशनियों में बीका हुआ था। बहरी बजरी की सुर्ख रोश में जिसके दोनों जानिब सरसब्ज और शादाब लॉन थे, गुलाब के फूलों से भरी हुई थी। लॉन्च में ले जाकर इसने रामदे सोफे पर बिठा दिया। मेहरीन कहाँ है? अकब से उभरती आवाज़ ऊपर कमरे में। अम्मा बी ने मुख्तसर जवाब दिया। जुगनू मेहरीन के मुतालिक सोचने लगी कि कौन हो सकती है, मैं देखता हूँ। वो उठ के जाने लगा था। जल्दी आ जाना, मैं दुल्हन को कमरे में भिजवा रही हूँ। माँ पीक का लहजा हुक्मिया था। उस सर इस बात में लाकर तेज से सीढ़ियाँ चढ़ गया। मुलाजमा अपनी हमराही में इसके बेडरूम में इन्हें पहुँचाई थी। गुलाब और मोती की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। कमरे की आराइश काबिल दी थी। वैसे ही वक्त गुजारी के लिए हर एक चीज़ का जायजा लेने लगी। इंतजार के कुछ लम्हे मजीद सिमटे, मगर दरवाजे पर कोई आहट ना हुई। इसने गाँव तक से टेक लगाते हुए आंखें मूंछ ली। चंद लम्हों में इसे अपने चेहरे पर किसी की तीखी नजरों का एहसास हुआ। उसने धीरे से पलकें उठाई और फिर हमेशा की तरह शब्द गाना भूल गई थी। मध्यम लहजे में सलाम करता इसके पहलू में बैठ गया था। एक ख्वाब जो इसने अपनी आंखों को सजाने की कभी इजाज़त नहीं दी थी, एक एहसास जो दिल में उतरने नहीं दिया था, एक दुआ जो हर बार लबों तक आकर वापस लौट जाती थी। आशिर मुजस्सिम बन के इसके पहलू में बरसमान थी, और वो खुद यकीन और बेयकीनी के दरमियान डोलती हुई एतबार करने में हिचकिचा रही थी। मुकाबिल बैठा शख्स भी कुछ सा रह गया था। आप तो जुगनू है ना? मैं जुगनू नहीं हूँ, मेरा नाम जुगनू है। वो हैरत के समुद्र से उभरती अब इसकी बेयकीनी वाली कैफियत पर महफूज हो रही थी। मगर निकाह तो अली से फजल रहमान से हुआ था। वो कुछ उलझ कर खोया हुआ था। हाँ तो मैं अली से फजल रहमान ही हूँ। वो मुस्कुराई थी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं कभी आपसे शादी ना करता। इसका मलाल में डूबा लहजा जुगनू के तमाम तर ख्वाबों का महल ज़मीन बोझ करता चला गया था। वो साकित नजरों से इसे देखने लगी। ये आपका तोहफा। जेब से एक मखमली डबिया निकाल कर उसने साइड टेबल पर रखी और खुद उठ कर चला गया। वो अपनी हसरतों की सेज पर अकेली बैठी रात भर सिसकती रही थी। कैसा लगा सरप्राइज? अगली सुबह चहकती हुई मून भी इसके सामने थी। सच्ची यार,
जब मैंने दूल्हा भाई का चेहरा देखा तो मैं शश ही रह गई थी। दिल में आया कि तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं, मगर फिर सोचा कुछ डर उसी में जुगनू के उड़े उड़े हवा से दूल्हा भाई का इज़हार मोहब्बत, वाह क्या रोमांटिक सीन होगा। और वो तस्वुर में जानकर खुद ही मुस्कुराई। वैसे एक बात तो बताओ, कहीं हमारे खुशी के बेहोश तो नहीं हो गई थी? जुगनू के पहलू में दसते हुए इसने इसके गले में बाजू डाल दिए थे। चलो नाश्ता करते हैं। जुगनू ने इसकी तवज्जो अलवाज़मात की जानिब करवाई थी। नहीं, आज से बाहर खड़ा है, वलीमे की तकरीब पर ही मुलाकात होगी। बस से गले मिलते हुए अलविदाई कलमात कहती चली गई। जुगनू घुटनों पर ठोड़ी टका कर कितनी देर खाली नजरों से कमरे के दरो दीवार को तकती रही थी। नाश्ते के लवाजमात वैसे ही रखे थे। ताज़ा फूलों का हुस्न कुछ मान पड़ चुका था। इसने एक एक करके सारी लड़ियां नोच डाली थी। बीबी साहिबा मुलाजमा ने दरवाजे से अंदर झांका। आपको अम्मा भी पिला रही हैं। इतला देकर वो पलटने वाली थी जब इसने आवाज देकर रोका था। वो पलट कर सवालिया नजरों से देखने लगी। मेरे कमरे की सफाई करवा दो, मुझे यहाँ कोई फूल नजर न आए। बेडरूम का रोमांटिक माहौल और मुअत्तर सी फिजा से दुश्मन जान की गुर्बत पर उकसाती थी। इसके हर पल में इंतजार से मिटाया था। वो इन लम्हों के करीब से निकलना चाहती थी। लाउंज के तख्त पर अम्मा भी गाँव तक्के से टेक लगाए बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा भी। इसने करीब जाकर अदब से सलाम किया तो उन्होंने सर पर हाथ फेरते हुए खूब दुआओं से नवाजा था, फिर अपने पास से बिठा लिया। आरफीन कहाँ है? इसके अल्फाज इनके लबों पर ही दम तोड़ गए थे। इसकी नज़र सीढ़ियों की जानिब उठी थी। वो आ रहा था मगर अकेला नहीं। इसके हाथ में एक बेहद हसीन लड़की का हाथ था। वो सामने आकर बैठी तो जुगनू को अपना रूप मैला सा लगा था। वो कितनी उज्जवल और शफाफ थी, किसी मोमी मुजस्मे की माने। बड़ी बीबी साहिबा, आपके लिए नाश्ता लगवाऊं? मुलाजमा लिपट कर आई थी। मैं तुम्हारी बड़ी बीबी साहिबा कब से होगी? कानों में रस घोलती तरन्नम आवाज़, मगर लहजा कुछ था। जब से छोटी बीबी साहिबा। मुलाजमा ने कदरे हिचकिचाते हुए बात अधूरी छोड़ दी, मगर इसकी फरापेशानी में फिर भी एक साथ कई बल पड़े थे। इसने नागवार कदरे सर्द और तीखी निगाह जुगनू पर डाली और लब बीच लिए थे। अगरचा ये इसका अपना फैसला था, मगर फिर भी सौतन को बर्दाश्त करने का ज़र्फ कहाँ से लाती। जुगनू, ये मेहरीन है, मेरी बड़ी बहू। अम्मा भी ने मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते हुए तारुफ करवाया था। मिसेस आरफीन हमदानी। इसने कमाल बेतकल्फी से आरफीन का हाथ थाम कर मुकम्मल तारुफ करवाया था। अम्मा भी अब मुलाजमा को नाश्ते के लिए हिदायत दे रही तो जुगनू का वजूद सनाटों के जर्फ में था। मिसेस आरफीन हमदानी की तकरार इसके इर्द गिर्द घूमने लगी थी। यहाँ तक कि इसे अपने हवा सिल्प होते महसूस हुए। वलीमे की तकरीब हवेली के लॉन में थी। कल की तरह आज भी ज़्यादा लोग मधु नहीं थे। अम्मा भी की दोनों बेटियों की फैमिलीज और चंद करीबी अहबाब थे। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो पहले से शादीशुदा था। इसने तो अपनी जानिब से बहुत बड़ा इंकशाफ किया, मगर अम्मा के इत्मीनान में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया, बल्कि उल्टा इस पर खफा हुई थी। ये बातें यहाँ करने वाली नहीं है, घर जाकर समझाऊंगी। जुगनू ने शिकवा के निगाह माँ पर डाली थी। देखो, मैंने ये फैसला तुम्हारी भलाई के पीछे नजर बहुत सोच समझ कर किया है। इतनी बड़ी हवेली, गाड़ियाँ, नौकर जाकर राज करोगी। रहा सौतन का मसला तो तुम इसके मुतालिक सोचना छोड़ दो। भूल जाओ कि आदमी पहले से शादीशुदा है। एक बार औलाद हो जाए तो देखना वो पहली को भूल कर तुम्हारे आगे पीछे फिरेगा। वो खामोश बैठी रही तो माँ आखिर में सरदर्द करती उठ गई थी। गाँव में किसी से भी इस बात का जिक्र ना करना। रस्म के मुताबिक आरफीन को आज इसके साथ जाना था। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं मेहरीन से मिलकर आता हूँ। वो बोझल कदमों से चलती गाड़ी में आकर बैठी थी। 20 मिनट के बाद वापस आया था। आई एम सो सॉरी जुगनू, मुझे एहसास है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आखिर से ख्याल आ ही किया था। फिर सो के मुझे आपसे कोई शिकायत थी? इस बार लहजे में बोली, नजरें ऊंची नीची पनकड़ियों पर जमी थी और दिलो दिमाग अजीब सी कश्मकश में उलझा हुआ था। अम्मा से अगर इसकी बात ना हो चुकी होती तो शायद वो इससे इसकी दगाबाजी का एहसास दिलाती, मगर अब शिकवा करती तो किससे और किस हक के साथ करती। जुगनू मेरी महरीन की लव मैरिज है। वो मेरी फर्स्ट कज़न है, मेरी खाला की इकलौती बेटी। बचपन से ही हम साथ हैं। मैं इसके सिवा किसी और के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। ये तो अम्मा भी की ख्वाहिश थी और किसी हद तक महरीन की भी। वो बच्चों के मामले में बेहद क्रेजी है और जब उसे पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तब से मुझे फोर्स करने लगी कि मैं उससे शादी कर लूँ। इस पर अम्मा भी का इसरार, बिल आखिर मुझे मानना ही पड़ा। इसके साथ इसके एहसास से बेखबर वो अपनी रिदा सुनाया जा रहा था और मेरा आपकी ज़िंदगी में क्या मुकाम है। गाड़ी रुक चुकी थी, इसका घर सामने था, मगर इसकी सवालिया नजरें आरफीन से जवाब तलबी के लिए उठी थी। तुम्हारा घर आ चुका है, तुम जाओ, मैं अब 3 रोज़ बाद अम्मा के साथ लेने आ जाऊँगा। वो दोबारा अपने हॉल में सिमट आया था। जुगनू इस नए हुक्म पर सारे सवाल जवाब भूल गई थी। मैं कई अंदाज में गाड़ी से उतरी। याद रहा तो महज इतना कि अब इतने सारे लोगों के सवालों का वो क्या जवाब देगी। आप नहीं आएंगे? मोहम सी उम्मीद बड़ी नजरों से इसने आरफीन को देखा था। महरीन मेरा वेट कर रही होगी। इससे ग्लासेस लगाते हुए उसने गाड़ी का रुख मोड़ा और उसके करीब से गुजरता चला गया। वो देर तक वहाँ खड़ी धूल उड़ाती रास्तों को देखती रही थी। टेबल लैंप ऑफ करके बाद इसने किताबें समेट कर एक जानिब रखी और उठकर खड़ी खिड़की में चली आई थी। पर चटकती हुई चांदनी रात थी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे लॉन में 4 कदमी कर रहे थे। जुगनू ने खिड़की के पर से टेक लगाते हुए हसरत भरी निगाह शख्स पर डाली जो उसका होकर भी इसका ना था। वो जैसे किसी जलते सहरा में खड़ी थी जहाँ ना अब्बर
ابر محبت کا کوئی سایہ تھا، نہ ہی کسی مہربان کا احساس۔ پیاس تھی کہ ہر روز برک اٹھی تھی، کس قدر اذیت ناک تھا اس کے حصار میں کسی اور کو مقید دیکھنا، اس کی والہانہ محبت بڑی نگاہوں کا اس کی جانب اٹھنا، اس کے ہاتھ کو تھامنا، اس کے بالوں کی لٹ کھینچنا، مہرین کا روح جانا اور عارفین ہمدانی کا سمنانا۔ کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر چلی گئی۔ بوریت اور تنہائی سے وحشت ہونے لگی تو اپنی زندگی میں کتنے خوش اور مگن تھی۔ یہ عارفین ہمدانی کہاں سے اس کی آزمائش بن کر چلا آیا؟ اسے پھر سے وہ لون والا سین یاد آیا تھا، اس کی آنکھوں میں مرچیں ایسی چبھنے لگی تھی۔ کچھ بھی تھا مگر وہ اس کی بیوی تھی، لہٰذا دونوں کے ساتھ مساوی سلوک اس کے فرائض میں شامل تھا، مگر وہ غافل تھا اور جگنو کو اپنی ذات کی نفی گوارا نہ تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ان دونوں سے 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ مہرین نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے عارفین کی پلیٹ میں رکھا، پھر ٹی وی کو زی سے چائے کپ میں ڈیلی تھی، اپنے لیے اورنج جوس اور فرینچ آملیٹ لیا تھا۔ جگنو ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھی رہی، اسے دیکھ رہی تھی۔ بس یہی وہ چند لمحے ہوا کرتے تھے جب بڑی فرصت میں اسے دیکھا کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر وہ عمر بھر بھی اسے سامنے بٹھا کر دیکھتی رہی تو اسے اس کی آنکھیں سیلاب نہ ہوں گی۔ تم ناشتہ نہیں کر رہی؟ یہ روز کا سوال تھا، گویا وہ اس کی وہاں موجودگی کا احساس تو رکھتا تھا، اتنا غنیمت تھا کہ وہ اس سے بے خبر تو نہیں تھا۔ میں کر چکی ہوں۔ وہ بھی ہر روز سے جھوٹ بولتی تھی۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ مہرین اسے مرکزی دروازے تک سی آف کرنے جاتی تھی۔ عارفین جانے سے قبل مہرین کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا تو ڈائننگ ہال میں بیٹھی جگنو کے ماتھے پر تپش اترنے لگتی تھی۔ مہرین ایسا کب تک چلے گا؟ ماں بی کے ترش لہجے پر وہ دہلیز کے اس بار ہی رکی تھی۔ ماں بی، میں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ آپ کا لاڈلا نہیں سنتا میری کوئی بات؟ مہرین کے احتجاج میں بھی ایک عرض آ گیا تھا، تم جب تک سامنے ہوگی وہ جگنو کی جانب پیش قدمی کر بھی نہیں پائے گا، تو کیا میں پردہ کر لوں؟ وہ منہ پھیلا کر بولی تھی، تم ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے میکے چلے جاؤ۔ انہوں نے مشورے سے نوازا تھا۔ ماں بی، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ مہرین کے روحاں سے لہجے پر اپنے قدموں واپس لوٹ آئی تھی۔ ماں بی میری اتنی حمایت کیوں کر رہی تھی؟ اس نے سوچا، انہیں پوتے کی خواہشیں، اگلا خیال اس کی الجھن میں بیچ کر آ گیا تھا۔ ہاں، تم تو آئی ہی اس گھر میں محض بچہ پیدا کرنے کے لیے ہو۔ کوئی اندر سے اس پر ہنسا تھا تو کیا ہوا؟ شادی کے بعد ہر عورت ماں بنتی ہے، اور جو نہیں بن سکتی۔ اس کی نظروں میں اچانک مہرین کا چہرہ گھوم کے کتنا مکمل حسن تھا اس میں، مگر پھر بھی ادھورا۔ آزمائش تو اس پر بھی آئی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ درمیان میں مہرین نہیں، وہ خود ہے، مگر اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، اماں بی کے لیے لنچ میں کیا بنانا ہے؟ بچی کی آواز پر اس کے خیالوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اماں بی کے لیے پرہیزی کھانا وہ اپنی نگرانی میں تیار کرواتی تھی۔ چلو میں آتی ہوں۔ اس نے الماری سے اپنا سوٹ نکالا اور شاور لینے کے بعد آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ بالوں میں برش کرنے کے بعد اس نے لپسٹک اٹھائی اور پھر بے دلی سے واپس رکھ دی۔ لنچ کے بعد اس کا سارا وقت اس کا تھا۔ اس میں وہ یا تو کورس کی کتابیں پڑھتی تھی یا ٹی وی دیکھ لیتی تھی۔ آج پڑھنے کا موڈ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کچھ دیر کے بعد دیر کے لیے لیٹی رہی تھی، مگر جاننے کا بھی اس کی آنکھ لگی۔ جب جاگی تو کمرے میں ہلکا سا اندھیرا پھیلا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ آنگن میں شام اتر آئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، عارفین بابا کی طبیعت اچھی نہیں ہے، مجھے کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس جانے دو۔ اب مہرین کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھتے اس کی طرف ہی آ رہے تھے۔ میری آج ان سے بات ہوئی ہے، آواز سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اعتراض کیا تھا، میں اپنی سیٹ ریزرو کروا چکی ہوں۔ ان کی آواز اب سرگوشے میں ڈھل چکی تھی، کیونکہ وہ بات کرتے کرتے بہت دور جا چکے تھے۔ جگنو ابھی تک ساکت اور بے یقین کھڑی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ مہرین جا رہی تھی، ایک ناقابل یقین حقیقت۔ اسے لگا وہ مذاق کر رہی ہوگی، مگر اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب سویرے اپنے بھاری بھرکم بیگ سمیت اس نے مہرین کو گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عارفین کبھی جگنو کو بھی باہر گھمانے لے جایا کرو، سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہے۔ شام کی چائے پر عارفین اماں بی کے گھیرے میں تھا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی جگنو کو دیکھا اور مروت میں انکار نہ کر سکا۔ تم تیار ہو کر آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ جگنو خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ پہلی بار اس نے عارفین کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش کے رنگ دیکھے۔ اس کی پرشوق نظروں پر وہ کچھ سی سمٹ سی گئی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا چل رہا ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اپنے اور جگنو کے مابین حائل معنی خیز خاموشی کو توڑنے کے لیے سوال پوچھا تھا۔ اچھا چل رہا ہے، بس ذرا اسٹاف کی کمی ہے۔ دراصل یہاں سے اسٹاف وہاں جاتا نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی تھی، مگر ان لوگوں نے پھر ٹرانسفر کروا لیا۔ وہ وضاحت دے رہا تھا جس پر وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر وہی خود ہی مخاطب کیا تھا، لیزے آپ مجھے جگنو کہا کریں نا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ جگنو نے اسے ٹوک دیا تھا۔ اوکے جگنو، وہ فوراً مان گیا تھا۔ جگنو کو دل سے خوشی ہوئی تھی۔ تو پہلے کہاں چلیں؟ اگلے ہی پر اس نے پوچھا تھا۔ کولنگ بیل کی بیپ پر عارفین اس جانب متوجہ ہو گیا۔ جگنو کی فرمائش ادھوری رہ گئی۔ وہ دوسری جانب مہرین تھے اور اس سے بات کرتے ہوئے وہ جگنو کی موجودگی یکسر فراموش کر چکا تھا۔ میں تمہارے عارفین کو تم سے نہیں بانٹ سکتی مہرین، کیونکہ وہ دل سے تمہارا ہے اور دلوں پر حکومت کسی ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ شاپنگ کرو گی؟ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک شاپنگ مال کے سامنے رکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، اب گھر چلے۔ وہ بے دلی سے کہہ کر باہر جھانکنے لگی۔ وہ پڑھائی میں بزی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر وارڈروب کی جانب دیکھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ آ جائیں۔ جو بھی تھا اس نے اجازت دے دی۔ دروازہ دھیرے سے کھلا۔ عارفین کا
चेहरा नमूदार हुआ। नींद से बोझल पलकों को झपकता वो अपना तकिया उठाए खड़ा था। जुगनू ने बेड पर लापरवाही से फेंका, वो दुपट्टा उठाकर शानों पर फैला लिया था। अब यहाँ सो जाएं। किताबें समेट के उसने बिस्तर की शिकने दुरुस्त की तो आरफी ने नींद दराज होते हुए उसका हाथ थाम लिया था। तुम कहाँ जा रही हो? इसका अंदाज पल में बदल गया था। जुगनू की नजर छूकी थी, बात मुकम्मल करना मुश्किल हो गया था। कहीं नहीं। वो दोबारा बैठ गई। तुम अगर पढ़ रही हो तो लाइट जलती रहने तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कहते हुए इसने आंखों पर बाजू रख लिया। वो मुतमिन सी होकर दोबारा तकिए के सारे नींद दराज होगी। लाइट इसने बंद नहीं की थी। वक्त गुजारने के लिए मैगजीन देखने लगी, मगर अब इसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। सोचे कहीं मुंतशिर थी और दाएं हाथ के बुश्त पर एक आंवला सा जलने लगा था। वो इतने करीब था कि इसके लिबास से उठती खुशबू इसके हवास को मुअत्तल करने लगी थी। उसने एक तिरछी निगाह इस पर डाली। वो मुकम्मल तौर पर नींद की वादियों में गुम था। लाइट ऑफ करने के बाद उसने नाइट बल्ब जला दिया था। रोमांटिक सी सबज रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अपना तकिया दुरुस्त करते हुए वो निगाह भटक कर वापस गए। जब वो जी हाँ चेहरे के से टकराई तो पलक झपकाना भूल गई थी। वो कितना पुरकशिश और हसीन लग रहा था। दोनों बाजू कोने के बिस्तर पर रखे वो ऊँधी लेटी इसे देखने में मगन थी। जब अचानक इसने फट से आंखें खोल दी। जुगनू का सांस जैसे रुक सा गया था। आरफी ने इसके गले में बाजू हमाइश करते हुए इसे मजीद करीब कर लिया था। क्यों देखती है मुझे इतना? वो उसकी आंखों में झांक कर पूछने लगा। पता नहीं, वो नजरें चुरा गई थी। मुँह ने बताया था तुम स्पेशल मुझे देखने के लिए अंदर हर संडे मार्केट आया करती थी। जुगनू का बस नहीं चल रहा था कि वो मून का क्या हशर कर डाले। ऐसी कोई बात नहीं है, वो साफ मुकर गई। अक्सर लड़कियां मुझे देखकर बल्कि चपकाना भूल जाती हैं। डोंट वरी, मैंने माइंड नहीं किया। इसके चेहरे पर संजीदगी मगर आंखों में शरारत थी। मुझे नींद आ रही है, वो बेबसी से मन बनाई थी, मगर मुझे तो नहीं आ रही। वो मजीद इस पर झुकाया था। जुगनू की सारी ये मज़ाहमतें लम्हा बलम्हा दम तोड़ने लगी थी। नाश्ता कौन सर्व करेगा? नाश्ते की मेज़ पर वो अपनी मसरूफ नशिस्त पर बैठी थी। जब आरफी ने वाले नजर से देखते हुए पूछा था। मेरीन के जाने के बाद वो आज पहली बार घर में नाश्ता कर रहा था। जुगनू उठकर मेरीन की सीट पर चली आई तो आमलेट का स्लाइस बनाकर उसकी प्लेट में रख दिया। तुमने पूछा नहीं कि मैं क्या लूँगा? आरफी ने दिलचस्पी से देखा, क्योंकि मैं जानती हूँ। हाफ बॉयल अंडा और चाय का कप इसके सामने रखते हुए मदन सा मुस्कुराई थी। आरफी ने एक गहरी भरपूर निगाह पर डाली। फिरोजी रंग तो इस पर बहुत सूट करता था। गंदमी रंग गुलाब थी, आंखें जाजब नजर में पोश वाली ये सादा मासूम सी लड़की से अच्छी लगने लगी थी। उसे मेरीन की जगह नहीं दे सकता था, मगर थोड़ा सा ख्याल तो रख सकता था। आज शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे। नैपकिन से हाथ साफ करते हुए उठने से पहले बोला था। जुगनू से बड़ी देर तक छोड़ने आए थे और जाने से पहले पलटा उसे देखकर फिर मुस्कुरा कर चला गया। इन्हीं दिनों डॉक्टर ने इसे खुशखबरी सुनाई तो पूरी हवेली में मुसरत की लहर दौड़ गई थी। अम्मा भी इसकी बुलाएं लेती न थकती थी। आरफीन बेहद खुश था और इसका बहुत ख्याल रखने लगा था। जुगनू का दिल चाहा कि काश मेरीन कभी वापस न आए, मगर अम्मा जी ने जैसे ही इसे फोन पर इतला दी वो दौड़ते हुए वापस आई थी। वो एक दिन के लिए मैके आई थी। अम्मा भी का हुक्म था कि अभी जाकर मिला और फिर पूरे 9 महीने वो घर से बाहर नहीं जाना। हफ्ते में एक बार अपनी बेबे से मिल जाया करो। इसके चेहरे को अपने जुड़े जगह हाथों में थामते हुए बेबे ने इसके रुखसारों को प्यार किया था। रहने दे बेबे ने, हमारी याद कैसे आएगी? मुझे लोग हो गया। जाजिब जानने कहाँ से आया था, तंज करता हुआ कहने लगा था। फुर्सत मिली है तुम्हें? कहाँ थे सुबह से? उल्टा इस पर बरसी थी। वही हूँ जहाँ तुम छोड़ के गई थी। ज़मानी लहजे पर जुगनू ने ठटक कर कुछ मशकूक नज़रों से घूरा था। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। फौरन पटरी पर वापस आया था। वो मुतमिन सी होकर से स्कूल की बातें करने लगी। मेरीन और आरफीन लाउंज में बैठे कैरम खेल रहे थे। वहाँ भी सोफे पर बेजुबान आने वाले मेहमान के लिए स्वेटर बुन रही थी। आरफीन आज चेकअप के लिए जाना था, हिम्मत करके इसने बोल ही दिया। दोनों ने अपने पसंदीदा मुश्किल से फुर्सत का एक पल निकाल कर से देखा था। जाओ आरफीन, मेरीन ने कुछ दिल से इजाज़त दे दी। आरफीन भी फौरन उठ गया था। जुगनू ने नोट किया था मेरीन अब बेहद खुश रहने लगी थी। जुगनू को मुखातिब तो उसने पहले कभी भी नहीं किया था, मगर इसके अंदाज में जो एक सदमहरी हुआ करती थी अब मफकूद थी। मगर इसका कमरा फिर से वीरान हो चुका था। नाश्ते की मेज़ पर इसकी नशिस्त बदल चुकी थी। उस घर में इसकी हैसियत भी थी, क्योंकि असल मालिक जो लौट आया था। आरफीन अलबत्ता इसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। आते जाते इसका हाल चाल दरियाफ्त करता है। वक्त पर इसे खाना खाने के लिए शबा को खुसूसी हिदायत थी। हर वीकेंड पर इसका चेकअप करवाने साल ले जाता। वो लॉन में तनहा होती तो कुछ पल इसे कंपनी दे देने चला जाता। इसके बेडरूम में बच्चों के लिए कितने ही पोस्टर आरफीन ने लगाए थे, मगर जुगनू ने उसे हटाकर वहाँ आरफीन की तस्वीरें सजा दी। फिर वो दिन आ गया जो उसके इस घर में आने का बायस बना था। आरफीन ने, मैं इसका नाम शहराम रखूंगी। वो नाजुक सा वजूद आरफीन की गोद में मुंतकिल होते जुगनू ने फरमाइश की थी। रेबा मेरीन ने भी ही नाम सोच रखा था। वो शहराम को प्यार करने लगा। जुगनू के अरमानों पर रोज पड़ गई थी। क्या था जो वो इसका भरम रख लेता। एक दिन बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वो जब फिर शहराम के हमरा हवेली आए तो मेरीन को लॉन्च में अपना मुंतजिर पाया था। आरफीन, ये तो बिल्कुल तुम्हारा अक्स है। वह शहराम को जुगनू की गोद से लेकर बच्चों की तरह खुश हो रही थी। अम्मा भी, ये तो बहुत छोटा है, मैं इसे संभाल पाऊंगी ना? हाँ, क्यों नहीं। और फिर मैं भी तो हूँ ना तुम्हारी मदद को। मौजूद अम्मा भी की हौसला अफजाई पर जुगनू ने चौंक कर दोनों को देखा। तभी शहराम रोने लगा। वो इसे लेने को उठी थी। शबो, जो फीडर बना के रखा था ना मैंने, वो ले आओ। मेरीन ने इसका इरादा भांपते हुए फौरन शबो को आवाज़ दी थी, मगर मैं यहाँ मौजूद हूँ। फीडर क्यों? देखो, ये मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहती कि इसे तुम्हारी आदत पड़ जाए। इसकी बात काट कर वो कदरे से बाहर अंदाज में बोली थी। जुगनू को लगा जैसे किसी ने इसका कलेजा नोच डाला हो। उसने शिकवा
बेपनाह नज़र से आरफीन को देखा तो वो लब भीजे हुए आंखें चुरा गया था। वो उठकर अपने कमरे में चली आई। दिल इतना बोझल हो रहा था कि जब्त के बावजूद आंसू छलक पड़े थे और फिर रात भर वो अपने खाली पहलू को देखती रोती रही थी। आरफीन एक बार भी इसके दिलजोई की खातिर नहीं आया था। इसने अम्मा को फ़ोन करके बताया तो उल्टा से समझाने लगी, जुगनू तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, मेहरीन इसे ऐसे ही शौक में उठा कर लेके गई हो। इस तरह की बेगमात बच्चे नहीं पालती, एक ही रात में आजिज़ आ जाएगी। तुम बस ज़रा सब्र और हौसले से काम लो, फिर वो दिन और फिर वो कौन सा तुमसे दूर है। एक ही तो घर में है ना। अम्मी के समझाने पर उसका दिल ज़रा संभल गया था। अगली सुबह मोहन और जासिर का मुबारकबाद का फ़ोन आया। दोनों बेचैन हो रहे थे कि शहराम को लेकर कब आएगी। तुम दोनों आ जाओ, इसका जाना तो अब भी मुश्किल था। वो इतनी उदास हो रही थी कि इन दोनों को इन्वाइट करने से खुद को रोक ना पाई। हालांकि अम्मा ने मना कर रखा था वो इससे पीरियड में किसी को भी अपने घर आने की दावत ना दे। 7 दिन बाद खूब धूमधाम से कीका हुआ था। मेरीन को ही इसकी माँ के तौर पर मुतारिफ करवाया गया था। वो अपने कमरे की खिड़की से देखती, बस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती थी। वो सुबह से लाउंज में बैठी मेरीन का इंतजार कर रही थी कि कब वो शहराम को लेकर नीचे आए, मगर शायद आज इसका अपने बेडरूम से निकलने का कोई इरादा ना था। थक आकर वो खुद ही ऊपर चली आई थी। दरवाज़ा खोला था। कमरे की दीवारें मेरीन और आरफीन की तस्वीरों से सजी हुई थी। एक दीवार पर बच्चों की तस्वीरें, अलमारी में खिलौनों के बहतान थे। शराम झूले में लेटा हुआ था। वो इसके करीब आई तो शराम पूरी आंखें खोले से देखने लगा। इसने मोहब्बत पाश नजरों से इसे देखते हुए उठाकर इसके नरम गुलाबी गालों को चूमा था। बेबी पिंक कलर के सूट में नन्हा सा गुलाब लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरीन से देखते हुए आबरू उचकाए थे। वो भी वॉशरूम से नहा कर निकली थी और बेहद फ्रेश लग रही थी। मैं शराम को लेने आई थी। इसने नागवारी का नोटिस लिया बगैर जुगनू ने कदरे इत्मीनान से जवाब दिया था। तुम्हारे मेरे कमरे में बगैर इजाजत आने की जरूरत कैसे हुई? इस कदर इस्तहाक बड़े अंदाज में मेहरीन के वजूद में चिंगारियां भर दी थी। तुम भी तो चली आती हो मेरे कमरे में बगैर इजाज़त। इसने भी बगैर किसी लिहाज के दो बदो जवाब दिया था। मैं इस घर की मालकिन हूँ और इसकी हर चीज़ मेरी मलकियत है, इसलिए मैं तुम्हारी इजाज़त की मुहताज नहीं। इसने तनफर बड़े अंदाज में जुगनू इस्तज़ाइया मुस्कुराई थी। जिस हैसियत का तुम जता रही हो इसका सर्टिफिकेट मेरे पास भी मौजूद है। क्या हो रहा है यहाँ पर? अम्मा भी दोनों की आवाज़ सुनकर आ गई थी। अम्मा भी, मैं इस लड़की को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका काम खत्म हो चुका है, अब चलता करे इसे। शहराम को इसकी गो से झपट कर इसने अम्मा भी को जैसे आखिरी फैसला सुनाया था। अच्छा तुम फिक्र ना करो, आज आरफीन आता है तो इस किस्से को भी निपटाते हैं। अम्मा भी मेहरीन को पुचकारते हुए बोली थी, जिस पर जुगनू फटी फटी नज़र से देखा था मगर उसकी जाने में तवज्जो नहीं थी। अम्मा भी आप क्या कह रही हैं? इनके करीब बैठते हुए इसने अम्मा भी को झंझोड़ डाला। सदमे के पास इसकी आवाज़ फटते जा रही थी। अम्मा भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। झोंपड़ी में रहने वाली आज मेरे मुकाबिल आने की जुर्रत करने लगी है। तुम इस काबिल नहीं हो कि इतने बड़े घर की बहू बनती। ये तो मैं माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए तुम्हें लाना पड़ा। लड़कियां तो हमारे सर्कल में बहुत थी मगर हमें किसी को इस हवेली की बहू और आरफीन की बीवी नहीं बनाना था। महज एक बच्चा पैदा करवाना था, जो तुम कर चुकी हो। अम्मा भी जुगनू ने इन दोनों के घुटने थाम लिए थे मगर वो इसके हाथ झटक कर उठ खड़ी हुई थी। मेरीन ने मेरी खातिर तुम्हें बर्दाश्त किया है, मैं मजीद इसका जब्त नहीं संभाल सकती। आरफीन घर आया, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। आरफीन, मैंने कभी तुम पर अपना हक नहीं जताया, कभी तुमसे कुछ तलब नहीं किया और वादा करती हूँ ज़िंदगी पर कभी कुछ तुमसे नहीं मांगूंगी। बस मुझसे अपना नाम मत छीनो, मुझसे मेरे शराम को मत जुदा करो। आरफीन का गिरबान दोनों हाथों में जकड़े वो सिसक पड़ी थी। मेरीन ने कहे बार नज़रों से आरफीन को देखा और अम्मा का भी इसरार था कि वो फ़ौरन से तलाक देकर घर से निकाल दे। जुगनू आरफीन इसके दोनों हाथ थाम लिए थे। मुझे अपने दिल में नहीं, महज इस घर में थोड़ी सी जगह दे दें। मैं फालतू सामान की तरह मगर एक कोने में पड़ी रहूंगी, अपने बेटे की आय समझ लूँगी। आरफीन, अम्मा भी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी ममता की भीख मांगती हूँ। रोते हुए वो इसके कदमों में झुक गई थी। आरफीन का दिल पिघलने लगा था। जुगनू के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा इसकी नज़रों से गुजरने लगा था। मोहब्बत नहीं मगर एक लगाव सा तो इससे हो ही चुका था। आरफीन, तुमने अगर जुगनू को ना छोड़ा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मेहरीन की धमकी की सूरत इसके गिर्द गूंजने लगी। वो जानता था वो किस कदर शिद्दत पसंद है, जो कहती है करके दिखाती है और मेहरीन से वो बेवफाई का तो सोच भी नहीं सकता था। जुगनू, मैंने तुम्हें ज़ियतों के सिवा दिया ही क्या है, तुम मेरे साथ ही कभी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे अम्मा भी और मेहरीन के इरादों का पहले से इल्म था। अगर मुझे पता होता कि उन्होंने तुम्हारा इंतखाब किया है तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता, मगर मुझे ज़बरदस्ती इस रिश्ते में जोड़ा गया था और आज मेरे पास तुम्हें छोड़ने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं वो रुक गया था। जुगनू ने ज़ख्मी नज़र से देखा, तो मैं तुम्हें याद करता हूँ कहकर रुका नहीं था, अपने कमरे में चला गया। जुगनू अपनी जगह साकित रह गई थी। कितने पल गुजर गए तब इसे शहराम का ख्याल आया तो उसने नीम दीवानगी के आलम में उठकर मेहरीन की गोद से छीन लिया था। ये मेरा बेटा है और मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारा आरफीन मुबारक हो। शराब मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं से किसी को नहीं दूंगी। पागल हो गई हो तुम शब्बो सफिया। अजमल मेहरीन की एक ही पुकार पर सब मुलाजमीन लाइन में खड़े हो गए थे। जुगनू ने शराब को अपने आंचल में छुपा लिया। शब्बो सफीना, शराब को मेरे हवाले करो और अजमल इसे हवेली से बाहर फेंक कर गेट बंद कर दो। इंतहाई तनफर से इसने बारी बारी सबको हुक्म दिया। शब्बो और सफिया से हिला तक ना किया। अन्य जुगनू पर बेपनाह तरस आ रहा था, जो शराब को अपने आंचल में छुपाए तजाए नजर से उन्हें देख रही थी। अम्मा भी, क्या आपने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? किसी को टिस होता ना देकर मेहरीन पूरी कुव्वत से दारी थी। नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरा शराब है, इसे मुझसे मत छीनो। जुगनू चीखती रही मगर इसकी मिन्नत समाज किसी ने ना सुनी। चौकीदार घसीटता उसे गेट से बाहर छोड़ आया था। जुगनू रक्शे में सवार इसके करीब से गुजरते हुए मोहन और जाजिम ने एक साथ इसे आवाज दी और फिर अचानक इसके सामने खड़े हुए वो जूते से बेनियाज नंगे पांव अनजान सिमतों की जानिब चली आ रही थी।
बाल बिखरे हुए दुपट्टा गले में झूल रहा था। सलोने रुखसारों पर मिटे हुए अश्कों के निशान बाकी थे, मगर आंखों में शनासाई का कोई रंग भी ना चमका था। जुगनू क्या हुआ है तुम्हें? इजाज़त ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपनी जानिब मुतवज्जा करने की हासिल सही की थी। कौन हो तुम? दोनों ने शदीद बनाती कैफियत में एक दूसरे की जानिब देखा था। मून के हाथ से सारे खिलौने और शॉपिंग बैग छूट कर वहीं सड़क पर गिर गए थे। जुगनू में मून हुई, इजाज़त है। मून ने तकरीबन इसे झंझोड़ डाला था। आसपास से गुजरते राहगीर भी इससे की जानिब मुतवज्जा थे। कौन? वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई थी। मून इसे थामना चाहा, मगर वो लड़क के इजाज़त के बाजू में झूल की थी। उन्होंने उठा के इसे टैक्सी में डाला, फौरन अस्पताल ले आए थे। इसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था और अब वो इमरजेंसी वार्ड में थी। मून इसके लिए दुआ गो थी। इजाज़त ठहरते हुए कॉरिडोर में उदास खड़ा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर अगले 8 घंटे तक होश न आया तो वो कोमा में जा सकती है। इजाज़त का बस चलता तो अपनी धड़कनों की रवानगी और सांसों का तसलसल से सौंप देता, मगर ये सब इसके इख्तियार में नहीं था। पर जिससे के इख्तियार में था वो दोनों इससे मांग रहे थे। 6 घंटे बाद कहीं जाके से होश आया था। वो मुकम्मल तौर पर खतरे से बाहर थे और उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वो दोनों एक साथ चलते हुए अंदर दाखिल हुए तो इनको देखकर महम सा मुस्कुराई थी, गोया वो साहब का जज्बाती कैफियत से किसी हद तक संभल चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे की बातें करके से साथे रहे। जाज़म ने मून को मना किया था कि फ़िलहाल इससे कुछ ना पूछे। वो कुछ देर तो इनकी उल्टी सीधी बातों पर हंसती रही, फिर हंसते हंसते रो पड़ी थी। जुगनू प्लीज़ रो मत। जाज़म को इसके आंसू तकलीफ दे रहे थे। किस कदर टूट कर बिखर चुकी थी। आरफी ने मुझे तलाक दे दिया, मेरे शराम को भी मुझसे छीन लिया। वो उसके शाने पर सर रख कर सिसक उठी थी, मगर क्यों? जाज़म ने एक झटके से इसे खुद से अलग किया था, क्योंकि वो महरीन को चाहता है। ये महरीन कौन है? इसे शदीद हैरत में आन गिरा था। इसकी पहली बीवी? जुगनू ने नजर छुपाते हुए बताया। बीवी? दोनों अपनी जगह से ना हिल सके थे। हाँ, इसकी पहली बीवी है। माँ भी को सब पता था, फिर भी उन्होंने दौलत की खातिर मुझे इस जहन्नुम में झोंक दिया। मुझसे शादी तो उसने महज दौलत की खातिर की थी। मतलब निकल गया तो मेरे वजूद को किसी इस्तेमालशुदा टिश्यू पेपर की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। इस आरफीन हमदानी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी जरूरत कैसे हुई तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे जज्बात से खिलवाड़ करने की? इंकशाफ उसका रवा रवा से लग उठा था। मुठिया भिजता उठ खड़ा हुआ। जाज़ब प्लीज रिलैक्स है, वक्त नहीं है अभी इस सब बातों का। जुगनू को देखो, उसकी हालत तो अच्छी नहीं है, और फिर मैं यहाँ अकेले क्या कुछ देखूंगी? अगर खुदा ना खास्ता तो मैं कुछ हो गया तो प्लीज़ बैठो यहाँ। मुन्ने से कॉरिडोर से बहुत मुश्किल वापस मोरा बढ़ना। इसके ज़ायम अच्छे खासे खतरनाक थे। हफ्ता भर बाद वो डिस्चार्ज होकर घर आई थी। इसने आते ही पहले बेबे के कमरे में झांका, वो खाली था। जुगनू उल्टे कदमों वापस आई थी। माँ, बेबे कहाँ है? इसका दिल बेहद उदास हो रहा था। पिछले 6 माह से इसने बेबे को नहीं देखा था। जब भी फोन करती शहर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। जुगनू बैठ जाओ। माँ ने इसका हाथ पकड़ कर अपने पास चारपाई पर बिठा लिया। क्या छुपा रही हैं आप लोग मुझसे? वो बेचैनी से बोली थी। तुम्हारी बेबे इस दुनिया में नहीं रही। शहर का दर्द में डूबा गम नाक लहजा इसे दिला गया था। बेसाख्ता उठ खड़ी हुई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी समातों पर इसे इख्तियार ना आया था। वो फुट फुट कर रो दी थी। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं किया? मेरा इतना भी हक नहीं था कि मैं आखिरी बार इनका दीदार कर लेती। मैं इस घर से क्या गई? आप लोगों ने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मेरा होना ना होना बराबर है ना आपके लिए? आप किसी खुशी गम में मुझे शरीक करना ज़रूरी नहीं समझते? वो कुछ ज़्यादा जज्बाती हो चुकी थी। बताया ना तुम्हारी सास को, इसने कह दिया कि तुम सफ़र नहीं कर सकते। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। फिर हम क्या करते? शहर को गुस्सा आ गया था। वो रोना बोल कर टटकी बांध कर पर इसकी सूरत को देखने लगी थी। इसे तो डॉक्टर ने ऐसी कोई एहतियात नहीं बताई थी। किस कदर बेहिस्से और संगदिल लोग थे। जाज़ब ने आरफीन हमदानी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था। जुगनू शहराम को पाने के लिए केस लड़ने को तैयार थी, मगर अम्मा ने सुना तो टोक दिया था। कोई ज़रूरत नहीं है मुकदमा लड़ने की। अब क्या तुम खानदान की इज्जत कचहरी में छालोगी? आज तक हमारे खानदान की किसी औरत ने अदालत का मुंह नहीं देखा, और तुम वहाँ 20 मर्दों के सामने खड़ी इनके लिए उल्टे सीधे सवाल का जवाब दोगी। और फिर अव्वल तो ये मुकदमा तुम्हारे हक में होगा नहीं, और बिलफर्ज अगर हो भी क्या तो क्या फ़ायदा? बच्चा 7 साल के बाद फिर बाप के पास ही वापस जाएगा। फिर तुम्हें क्या हासिल होगा? मैं तो कहती हूँ भूल जाओ। जो हुआ मिट्टी डालो। हमने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया है। वही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। और वह जैसे ठहर सी गई थी। शहर की मंगनी भी इसके बगैर इन्हीं दिनों में अख्तरी खाला के दोस्त से हुमायूं से तय हो गई थी। वो लोग अब शादी पर स्टार्ट करने लगे। लड़का सऊदी अरब में मुकीम था, 2 माह की छुट्टी पर आया था। इसके जाने के बाद घर में मजीद उदासी और खाली खाली सा लगने लगा था। जुगनू ही नहीं, कहके नोक और चौंक आंखों की चमक सब कुछ कहीं खो सा गया था। खाली घर के दर दीवार को तकती रहती थी, कभी उकताई नहीं थी। वो जो महफिलों की जान थी जिसका कोई पल तन्हा नहीं गुजरता था। अब सारा दिन बैठे खिलाफ में जाने क्या सोचती रहती थी। कभी कोई तिनका जो हाथ आ जाता तो बेख्याली में मुट्ठी कुरश कुरश के शराब का नाम लिखती चली जाती। इसकी आंखों को महज इसकी दीद की प्यास थी। इसके कान न तक किलकारी को तरस चुके थे। इसका नाजुक सलाम से याद आता तो पागल सी होने लगती। रोजाना उंगलियों पर दिन गिनती। आज शराम 6 माह का हो चुका था। इसने दिल में साफ किया। फिर वो
सोचने लगी कि अब वो कैसा दिखता होगा। अब मिसेस की हालत देखी नहीं जाती थी। वो दिन में कई बार इससे लम्हे को कोसती जब वो दौलत का लालच उनके दिल में समाया था। वो तो गाड़ियों की लंबी लाइन और इतनी बड़ी हवेली देखकर उलझ गई थी। अब तो दिन रात ही गम था कि जुगनू का क्या बनेगा। मोहन और जाजिब रोज आते थे, स्कूल के बच्चों की और गाँव वालों की ढेरों बातें चटपटे किस्से सुनाते। मोहन रोज उसे कई नए एडवेंचर पर उकसाती, मगर इसका दिल जैसे हर चीज से उचाट हो चुका था। आजकल जाजिब ने उम्मीद बांध रखी थी कि वो पहले की तरह स्कूल आया करे, मगर वो इनकारी थी। अब इसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। कल स्कूल को मेरी जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, आज स्कूल को तुम्हारी जरूरत है जुगनू, तुम्हें आना होगा। वो ख्वाब जो तुमने हमारी आंखों में सजाया था वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। तुम इसे बुरा नहीं छोड़ सकते प्लीज। जाजिब मेरा दिल नहीं चाहता। वो बेदिली से बोली थी। मोहन की शादी हो रही थी, फरहान ने बहरीन चले जाना था, इसलिए इसकी खाला चाह रही थी कि जाने से पहले शादी हो जाए। मोहन शादी की तैयारी में मगन थे, स्कूल में बच्चों की तालीम का खर्च हो रहा था। जाजिब की यही बात रोज इसे समझाने की कोशिश करता, मगर जिसके सब ख्वाब ही बिखर चुके हों, जिसके सारे ख्वाब ही बिखर चुके हों, वो उसका साथ कह देती। तुम्हारे एक बार कहने पर मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था। मैं इतने दिनों से तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ, तुम हो कि मुसलसल इनकार के जा रही हो। हाँ, तुम क्यों मानोगी मेरी बात? आखिर में तुम्हारा लगता ही क्या हूँ? शायद मैं भूल चुका हूँ कि तुम एक खुदगर्ज लड़की हो जो बस अपने बारे में सोचती है। वो खफकी से कहता उठ के चला गया। जुगनू उसकी पुष्प को घूरते लबेश गई थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद खिलाफ तवक्का वो घर से बाहर निकल आई थी। कच्चे पक्के रास्तों को छोड़कर वो पगडंडियों पर उतर आई थी। स्काई रोड को स्कूल की चिंता। जाजिब रास्ते में खड़ा उसका वेट कर रहा था। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। उसे देखकर वो मुस्कुराती है। डायलॉग्स हम छोड़ते तो कभी ना आती। वो मुंह बनाकर बोली, फिर दोनों खामोशी से साथ चलने लगे। सच्ची से कहती हूँ, मोहन के साथ साथ तुम्हारा भी इंतजाम करे। पीपल के पेड़ से एक टहनी नोचते हुए उसने जाजिब की आंखों में चमकते ख्वाबों से नजर चुराई थी। वो उनकी शादी के साथ नहीं, इसके बाद। वो नीम रजामंदी से बोला था, कोई पसंद है? टहनी को जलाते उसने अपना लहजा पत्ता के सरसरी से रखा था। हाँ, इसने मुंह पे सर इकरार किया। वाकई कौन? टहनी पहनकर वो उसकी सीने मुड़ी थी। वो जो समझती नहीं है अपनी जान को भी अनजान बनती है। इसकी आंखों में झांकते और जमानी लहजे में कहता, स्कूल का गेट अब कर गया। वो कुछ देर उलझती रही, फिर सर चढ़कर स्कूल में चली आए थे। बच्चों में आकर हकीकतन उसका दिल बहल गया था। उसने सोचा अपनी बाकायदगी से स्कूल आएगी। वो उनकी शादी के फंक्शन में इसने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। खुद का स्कूल और घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ स्टडी में भी जाकर काफ़ी हद तक संभाल लिया था। जख्म पुराने थे, दर्द की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई थी, मगर ये था कि वक्त देर से गुजरने लगा था। शाम के करीब वो सोकर उठी तो चचा चची आए बैठे थे। दो चार पाइयों के दरमियान चटाई पर चाय के दो खाली कप और मिठाई की प्लेट धरी थी। कहाँ से आई है? इसने बर्फी का एक टुकड़ा उठाया था। तुम्हारे चचा लाई हैं। अम्मा का खंगालता हुआ लहजा और चेहरे पर खिले रंग से चौंका गए थे। जरूर कोई जरूरी बात है। इनका ध्यान मोहन की जाने चला गया। इसकी आजकल ही डिलीवरी में तो थी कि आप खुशखबरी है? इसने बेताबी से पूछा। तुम्हारे चचा ने जाजिब के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैंने हाँ कर दी। मिठाई का टुकड़ा वापस प्लेट में रखती हुई वो उठ खड़ी हुई थी। मुझसे पूछे बगैर वो अभी तक शौक में खड़ी थी। घर की बात है, तुम हमारी बेटी ही तो हो। चच्ची ने इसका हाथ थाम कर वापस अपने करीब बिठाया और अपने सोने के कंगन उतार इसके बाएं हाथ की उंगली में पहनाती, बस आज से हमारी बेटी है। अमली मुसारा करने के लिए प्यार भी कर डाला। चचा ने जेब से 3 नीले नोट निकाल कर इसकी गोद में रखे और सर पर शफकत पर हाथ फेरा था। वो चाहने के बावजूद कोई एहतजाज न कर सकी, मगर जाजिब पर जो गुस्सा था वो किसी तौर पर कम न हुआ। शाम डले ही इसके सर पर पहुंच चुकी थी। जाजिब ये क्या हरकत थी? इसके हाथ से नावल चिपट के इंतहाई तर्ज लहजे में दरियाफ्त किया था। वो जो जासूसी नावल के बुरी तरह से मसरूफ था। इस अचानक अफ्ताब पर बुरा का सीधा हुआ था। फिर से देखते ही आंखों में शरारत मंडाई थी। कौन सी हरकत? नावल तो ही तो पढ़ रहा हूँ। मासूमियत भरा अंदाज था। चचा और चची को तुमने भेजा था ना हमारे को? कमर पर हाथ टिकाकर लड़ाका अंदाज में बोली थी। वो अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, जहाँ चाहेंगे आए जाएंगे। बेनियाजी से शाने उचकाए जुगनू कुछ देर खड़ी से घूरती रही, फिर उंगली से अंगूठी उतार के उसकी गोद में फेंक दी थी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए समझे। बाकी के 3 नोट टेबल पर रखकर कनफन करती हुई अपनी पलटी ही थी तो वो उछल कर उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। मेरी मोहब्बत को हमदर्दी का नाम मत दो। दरवाजे के अंदर में रास्ता रोके हुए खड़ा वो संजीदगी से बोला था। मोहब्बत इसकी आंखें सुकर के पहले थी। अब इस वक्त कहाँ थी ये मोहब्बत जब आरफीन का प्रपोजल आया था? तुम झुम झुम कर नाच रहे थे। आरफीन तुम्हारी पसंद था और मेरे लिए ही ख्याल बायस इत्मीनान था कि मैं ना सही लेकिन तुम खुश तो रहोगी। ये तो इसे देख के पता चला था कि मेरा निकाह जिस आरफीन हमद आदमी से हुआ है ये वही शख्स है। फिर तुम्हें पहले कैसे पता? इससे जरा न तबारा इसकी वजाहत पर उल्टा मशकूक नजर से देखने लगी। चची जान मुझे ही साथ लेकर गई थी। मैंने मुंह से जिक्र किया। वो आईडीओ तो इसने ही बता दिया था और हम दोनों तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता। बहरहाल तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल सकती है। इसने बहस को समेटना चाहा था। और मुझे तुमसे अच्छी लड़की नहीं चाहिए। मैं तुम पर राजी हूँ। इसकी डटाई भी अरूज पर थी। जाजिब प्लीज़ मुझे तंग मत करो। ये नहीं हो सकता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना सही लेकिन हम अच्छे दोस्त तो हैं ना, और 2 अच्छे दोस्त ही अच्छे हम सफ़र साबित हो सकते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर वैसी नहीं जैसे तुम समझते हो। वो दूसरी बात नज़रअंदाज करके पहली बात के जवाब में जला गई थी। मोहब्बत ऐसी और वैसी नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है और इसका इकरार तुम कर चुकी हो। अब तो मुकर नहीं सकती। उसी के लहजे में गोया हुई थी। मुझे फिर भी इनकार है। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। आरफीन को चाहती हो अब तक? इसका लहजा
तंजिया लहजा जुगनू को साकित कर गया था। मैं नफरत करती हूँ आरफीन अख्तारनी से, और दोबारा मेरे सामने शख्स का नाम मत लेना। बेवकूफ़ थी जो मैं खरे और खोटे की पहचान ना कर सकी, और यही गलती तुम फिर से क्यों दोहराना चाहती हो? जादू तुम समझ क्यों नहीं रही? मैं एक मुतलक्का तेज से पलके झपकते उसने आंसू जब्त करने की कोशिश की थी। मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, तुम पागल हो, वो तंग कर बोली थी। शादी क्या पागल करते हैं? इसने उल्टा सवाल किया था। रास्ता छोड़ो मेरा, इसने बात बदल दी। अगर ना छोड़ूं तो मजीद फैला तो मैं चच्ची को आवाज़ लगा दूंगी, इसने धमकाया था। वो तुम्हारे घर बैठे हैं, पुरसकून अंदाज से रिंग पहन लो फिर चली जाना। इसकी रूहानी सूरत को देखकर गोया तरस खाते हुए इसने जाजिम ने हथेली पर रखी अंगूठी इसकी जानिब बढ़ा दी थी। जुगनू ने खाजानी नजरों से देखा, कुछ लम्हे खामोशी से गुजरे गए, फिर इसने हाथ बढ़ा दिया। दोनों की शादी को 3 साल गुजर चुके थे। चचा ने घर की दरमियानी दीवार गिरा के उनके और अपने घर को फिर से एक कर दिया था। वो अम्मा, चचा और चाची, जाजिम और इनका 2 साल का बेटा सब साथ रहते थे। दोनों स्कूल पर प्राइमरी से हाई स्कूल का दर्जा इख्तियार कर चुके थे। जिंदगी हर लिहाज से मुकम्मल थी, मगर अंदर कहीं खाली खाली सा था। एक खलिश थी जो दिल में कांटे की माने चुभती थी। कभी कभार ऐसा लगता था वो शराब हो, कभी तशना है। शराब ख्याल और इसकी याद कभी दिल से ना गई थी। उसे हर वक्त हर लम्हा याद आता था। आज इसकी 5वीं सालगिरह थी। ऑफिस में गुमसुम उदास बैठी थी जब ब्लैक लैंड क्राउज़र का खुले गेट से अंदर दाखिल हुई थी। हमेशा की तरह बावर्दी ड्राइवर ने उतर कर दरवाज़ा खोला था। इंतहाई शान शौकत से इसने ITO साहब को गाड़ी से उतरते देखा। इसकी वही मतवाज़न 4-5 साल के बाद उसे नजर आया था। स्कूल के कुछ मामला थे, वो डिस्कस करने के बाद जब वो उठा तो जुगनू बेसाख्ता से पुकार बैठी। इसने पलट कर देखा, जुगनू की इस बार निगाहें इसकी जानिब उठी हुई थी और इसमें एक ही सवाल था, शेरान कैसा है? अच्छा ही होगा, इसने जैसे कड़वे जब से जवाब दिया था। वो बेसाख्ता अपनी जगह से उठ के रही हुई थी। क्या मतलब है अच्छा ही होगा? इसका लहजा टूट सा गया था। हमने वो जुल्म किया था ना तुम्हारे साथ, हमें इसकी सजा मिली है। सच पूछो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे तुम्हारा सामना करूं। आरफीन शेराम कहाँ है? जुगनू ने जैसे इसकी लंबी चौड़ी तहमत सुनी ही ना थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि जुगनू के तुम बज़ाहिर आम सी नजर आने वाली लड़की अंदर से कितनी खास है। मुझे पता ही ना चला कि कब तुम मेरे दिल में रहने लगी थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। आरफीन के दिल और ज़मीर पर जितना बोझ था वो सब उतार देना चाहता था। जुगनू की आंखों में वहशत उतर आई थी। इसके नज़दीक अब इस इकरार मोहब्बत की कोई वक़्त ना थी। वो ख्वाहिश तो कब की मर चुकी थी। आरफीन मेरे शेराम का बताओ। वो चीख उठी थी। आरफीन बेबसा इसे देखने लगा। काश तुम अपने साथ हुई वक्त तड़पी का कुछ तो हिसाब मांगती तो शायद हम इसकी सजा इस कदर भयानक ना मिलती। अब अपने की ज़बान को इसके हाथों से ज़्यादा ना करा सके। वो 2 कदम पीछे हटा था। मैं भूल गया था कि जो देने पर कादिर है वो लेने पर भी कुदरत रखता है। तो क्या शेराम? जुगनू ने बेसाख्ता ही अपने लबों पर हाथ रखा था। हाँ, वो तुम्हारे जाने के बाद तो चंद रोज से ही हमारे साथ रहा था। आंसू का सैलाब था जो आरफीन की आंखों में थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार रुखसारों से बह निकला था। वो जहाँ खड़ी थी वहीं बैठती चली गई। मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुमसे ऐसी सूरत में मिलूं। वो खुद खिलाफी के अंदाज में बड़बड़ाई। वो खुद से जब्त हो चुकी थी। तभी एक 2 साल का गोल मटोल बच्चा बाल के पीछे भागता हुआ अंदर आया था। बाल की तलाश में जब इसकी निगाह रोती हुई जुगनू पर पड़ी तो उसके करीब चला आया। मामा, वो जुगनू का पुकारा था। आरफीन हमदानी कुछ कहे बगैर वापस लौट आया था। इसे जो कहना था अब इसका वक्त गुजर चुका था। मामा, शेराम ने फिर से इसे पुकारा तो वो अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुराए थे। बहुत पाश नजरों से इसे देखते हुए गले लगा ली। इसे लगा जैसे अल्लाह ने शेराम को आरफीन से छीन कर वापस इसे लौटा दिया। देखा तो जब से ये शेराम साहब तशरीफ लाए हैं ना जुगनू, तुम मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाती। जाज़ो ने अंदर दाखिल होते ही ये मंजर देखा तो उसमें फक्की का मुजाहरा करते हुए फौरन मुंह बना लिया। इतना गुस्सा ना किया करे मास्टर जी। बैग कंधे पर डालने के बाद वो शेराम की उंगली थाम इसके सामने आकर खड़ी हुई थी। जाज़िब को आज कितने बरसों बाद वो पहली बारी जुगनू लगी थी। वही हंसती मुस्कुराती शरारती सी। वो मास्टर जी कहने पर बुरा मानना भी भूल गया था। बस महबूब से देखने लगा था। अब चलो भी वो चलने लगी थी। इसकी शौक और वार्ता निगाहों पर इसने कदरे छिंचलाकर कहा तो जाज़िब ने इसके गले में बाजू डाल दिए थे। मुझे लग रहा है कि आज मुझे तुमसे एक बार फिर से मोहब्बत हो गई है। पागल, वो बेसाख्ता हंसते हुए ऑफिस से बाहर निकल आई थी। अरे सुनो तो, वो पुकारता हुआ पीछे आया तो वो अनसुनी करती हुई जा रही थी। कुछ दूर जाकर इसने अपने सामने खड़ी दोनों स्कूल के इमारतों के पहलू में खड़े जाज़िब और शरारतें करते शेराम को देखकर सोचा, कल जो ख्वाब हमने देखा था वो आज रोशन तकदीर की सूरत सामने था। खत्म शुरुआत। सो रीडर से था नावल, और यकीन करें मुझे इस नावल में ना कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। पहली बात ये है कि आरफीन का लास्ट पे दिखाया, महरीन थी ना, आई थिंक उसकी बीवी जो पहली थी महरीन, उसका और इसकी जो सासू माँ थी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा लाजमी होता। अगर देखा जाए ना तो बच्चा जो है वो उसका जुगनू का गया, दुख भी उससे ही हुआ क्योंकि वो उसकी औलाद थी। महरीन की अपनी औलाद नहीं थी। बेशक उसने बच्चे के लिए सारा कुछ किया और उसकी सास ने भी सारा कुछ अपने पोते के लिए किया जो भी किया,
تو زیادہ نقصان جو ہے جگنو کا ہی ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں ساس اور بہو کا نا لازمی وہ کچھ نہ کچھ انجام لازمی دکھانا چاہیے تھا۔ مطلب اس کی ساس اتنی خود غرض، اتنی جاہل عورت اس میں دکھائی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب ایک جیتی جاگتی لڑکی کو لا کے اس کو یوز کر کے اس کے بدن سے بچہ پیدا کروا کے اور اسے جو ہے نا وہ کوڑے کی طرح پھینک دینا، اور اس کے بعد اس کی بیوی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں لائے بچے کی طرح خاطر تھے۔ اور سب سے زیادہ اس میں جو مجھے سب سے زیادہ برا کریکٹر لگا ہے نا وہ جگنو کی ماں کا لگا ہے۔ نہ وہ یہ اس طرح کی حرکت کرتی، نہ وہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی، یعنی کہ اسے پتا تھا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے لیکن پھر بھی پیسہ دیکھ کے پیسہ ہی ہر ایک چیز نہیں ہوتا کہ پیسہ۔ اور پھر وہ جو کہہ بھی رہی ہے کہ وہ میرے بچے کو اٹھا کے لے گئی، اپنی ماں کو کہہ رہی ہے، اور آگے سے ماں اس کی کیا کہہ رہی ہے کہ تم فکر نہ کرو، وہ تمہارے پاس ہی آئے گا، یہ وہ ایک کمرے کی تو بات ہے یہ۔ مطلب عجیب ماں ہے، اپنی اس کی اولاد ہے، اپنی 2 بیٹی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی ممتا کو محسوس ہی نہیں کر پا رہی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر اپنی اولاد نہیں ہے تو پھر بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ اولاد کا درد نہیں سمجھ سکتی۔ اس کی اپنی 2 بیٹی ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی جو ممتا ہے اس کا احساس ہی نہیں کر پا رہی۔ عجیب ماں ہے، مجھے جنوں کی جو ماں ہے نا انتہائی کوئی بری عورت لگی ہے۔ سب سے برا تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا تھا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ برا کیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس نے عارفین کی پہلی بیوی نے اور اس کی ماں نے جو ہے نا وہ بہت برا کیا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ رائٹر کو دکھانا چاہیے تھا کہ لاسٹ میں ان کے ساتھ بھی برا ہوتا۔ بچہ تو جو ہے جگنو کا گیا ہے نا، بیٹا تو اس کا چلا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوا وہ تو لازمی دکھانا چاہیے تھا۔ اور عارفین کو بھی تھوڑا کیا اسے بھی دکھانا چاہیے تھا کہ اسے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہے نا اچھی خاصی ان کو تکلیف پہنچتی ہے تاکہ پتہ چلتا کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اس طرح سوچ کے لڑکیوں کو دوسری شادی وہ کروا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر اس نے دوسری شادی، اس میں مجھے لگتا ہے عارفین کی بھی غلطی ہے۔ تمہاری اگر تم اپنے پہلی بیوی کے پیار میں اتنا ہی ڈوبے ہوئے تھے، اتنی تمہاری مردانگی تھی کہ تم کسی دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو پھر تم دوسری بیوی کے پاس کیوں گئی؟ مطلب اپنی پہلی بیوی کے کریز کہ وہ اتنی کریزی ہے بچوں کے معاملے میں، یہ وہ فلاں فلاں، اس کی خاطر تم نے ایک جاندار لڑکی، زندہ صحیح سلامت لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اسے اپنا نام دیا، اور اس کے جسم کے ساتھ کھیل کود کے بچہ پیدا کر کے، تو اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اسے جو ہے نا بچوں کا شوق تھا، تو اس کے بعد میں مجبور تھا، یہ تھا وہ تھا، بھاڑنے کی تمہاری ایسی مجبوری۔ اگر تم مرد تھے نا، اگر تم اپنی پہلی بیوی کو کہتے کہ میں نے دونوں کو رکھنا ہے تو کیا وہ تمہاری پہلی بیوی بات نہ مانتی؟ 1-2 دن تک وہ اپنے سسرال میں رہتی، اگر وہ تم سے محبت کرتی تھی تو کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتی۔ طلاق کی بات اس وقت کری تھی لیکن جب اس کا غصہ کم ہوتا تو وہ ہو جاتا، لیکن اس کی خاطر سارا کچھ کر کے مجھے لگتا ہے کہ یہ عارفین بھی اس میں انتہائی کو گھٹیا دکھایا ہوگا۔ اس کی ماں بھی گھٹیا تھی اور اس کی پہلی بیوی بھی گھٹیا تھی، اور جو جگنو کی ماں تھی وہ اس نے تو کیا ہی غلط ہے۔ اور مجھے تھوڑی بہت جگنو کی بھی غلطی لگتی ہے کہ جب اسے پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں میرے ساتھ یہ ہونی ہیں تو اسے یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہی یہ چیزیں، اب بھی تو ماں کے گھر میں آ کے بیٹھی تھی نا، تو جب اسے پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو پہلے ہی گھر آ جاتی۔ اور جب وہ فیملی تھی ہی مطلب ہی صرف بچے کی خاطر ہر ایک چیز کر رہی تھی۔ خیر باتیں کرتے جاؤ تو مزید آگے نکلتی آتی ہیں۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا، امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ کو پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لیکن کوئی برے الفاظ جو ہیں وہ یوز مت کیجیے گا، نہیں تو مجھے ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔